Everyone is healthy and safe. I'm doing great. I see Chantal Sethi, moderator of today's virtual CPE meeting being organized by Jaipur branch of CIRC. As we all know, we are going through with the pandemic of COVID-19. Despite of it, our branch is working tirelessly for upliftment of our noble profession. In this series, today's virtual CPE meeting is being organized to cover caution taken under cash transaction under Income Tax Act. Before we starting the session, I would like to say a few words by CA Prakash Rana sir. Good morning, friends. Respected Chairman of Jaipur Branch, Anil Yadav ji, Secretary of Jaipur Branch, Kuldeep ji, other executive members, Speaker of today's session, Ashok Jain Saab, and today's moderator, Chanchal, and all my friends. It's really a pleasure that in this COVID time, we are utilizing our time as best as possible. First of all, I would like to place my sincere regards to Jaipur branch for performing for the last year, the balance sheet which they have given on 31st March 2020. That is the highest profit we have ever had. And till date, we have got 150 branches in all over India of our institute. Majorly all branches have sent their accounts. Till now, Jaipur branch is having the highest profit in all over India, although there are some branches are their report is still pending, but they have performed very well, managing all the different field, different programs. Jaipur branch has performed wonderful. So my sincere regards to them, and I expect that in future also they will be performing like this only. Friends, कोविड के कारण से हमको बहुत नुकसान हुए, लेकिन कुछ कोविड से हमको कुछ फायदे भी हुए हैं. हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनका हमको पहले कभी पता ही नहीं था कि वो किसी डिफरेंट फील्ड में भी एक्सपर्ट हैं. जैसे कि अपन बात करें, हमारे जो आज के स्पीकर है अशोक जैन साहब, जो कि हमारे जयपुर ब्रांच में 2 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हुए हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सोशली कनेक्टेड है. इवन जो पिछले 3 साल से हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जयपुर में करते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. सारा कैटरिंग का जुम्मा इनके भरोसे होता है, टोटल यही कंट्रोल कर रहे होते हैं. हम उसमें बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाते हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अपने फील्ड में भी इतने एक्सपर्ट हैं. अभी कुछ दिनों पहले ही एक 100 लोगों की वेबिनार में, छोटे ग्रुप में, ये कैश ट्रांजेक्शन्स पे ही अपने व्यूज शेयर कर रहे थे और सुन के बहुत अच्छा लगा. और हमने इनको रिक्वेस्ट की कि जब आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो तो आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हमारे मेंबर्स को भी अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए. उसके लिए इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है सर. और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो आज की इनकी जो स्पीच है वो हम सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए over to again moderator Chanchal. Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to invite our speaker of the day, C. Ashok Kumar Jain sir, who is who is in practice since last 30 years and senior partner of Ashok Halkawat and Company. He has vast experience of central statutory audit of public sector banks and undertakings, convener of Jaipur Central CPA Study Circle, Jaipur of ICAI from 2016-17 onwards, Secretary of Jaipur branch of ICAI during 2011-12 and 2012-13, and executive member of Jaipur branch of ICAI for the term 2010-13 and 2013-16, executive member of Jaipur branch of ICAI for the term 2010-13 to 13-16, convener, coordinator, and speaker in various conferences, RRCCs, and seminar organized by ICAI, senior vice president of Jaipur Jilla West Federation Jaipur Central, chief coordinator of installation ceremony, international president of Jain Social Group International Federation,
2019-21, Chairman of Committee of Jain Social Group, International Federation for the year 2019-21, President of Anukampa Mention Vikas Society during 2014-15 and 15-16, former President of Jain Social Group, Central Sansthan, Jaipur during 2003-4, Founder, Secretary of Jain Social Group, Central Sansthan, Jaipur during 2001, former member of SNC of SS Jain Subodh Higher Secondary School, Jaipur, and SS Jain Subodh MD Institute, member of Jain International Trade Organization, Jaipur, lifetime member in J Club, lifetime member of RTCA and TCA, and lifetime member of Mahavir International Pink City. We are honored to have you, sir. Before starting the session, I would request you all, please raise your queries by raising your hand or sending it to me in my chat box. And now I would like to hand over to Ashok Jain, sir. So please start now. Thank you very much, Chanchal ji, for your kind words. Respected Jaipur Branch Chairman Ali Yadav ji, respected Central Council member from our own Jaipur city, CA Prakash Sharma Sahab, Secretary Kuldeep Gupta ji, other executive members, general members of the Jaipur branch, as well as from other places, moderator of the today's program, Chanchal ji. First of all, I am thankful to Jaipur branch for giving me this opportunity. The today's topic is a very relevant but a rare topic. Generally, this topic is not taken many of the times, but somehow, as Mr. Prakash Sharma has told in front of you, that this topic is very relevant, and he heard at some place this topic when I was speaking. So he asked me to cover this topic on the branch platform also, and it is a matter of pride and privilege for me to be here as a speaker. As we all know, that today's topic is precautions to be taken while doing cash transaction under the Income Tax Act. So now I want to share my presentation as a screen on the screen. Then we can start our formal presentation. Okay. Friends, as we all know, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, whether it is of the any of the party, it was regular thrust of this government that we should have the less cash in our economy. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है ब्लैक मनी के रूप में, और ब्लैक मनी नॉर्मली 3 जगह पे कैटर होती है, कैश में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में. और हम लॉन्ग बैक देखे 2008 में एक बार इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमीज में सुनामी आई थी, जो सब प्राइम यूएस और की वजह से थी, जिसमें लेमन ब्रदर्स का फेलियर हुआ था जबरदस्त रूप से, और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड था. इंडिया पे भी इफेक्ट था, बट वी आर फॉर्चुनेट एट दैट टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी के रूप में ये कैश करेंसी जो चल रही थी, उसकी एक पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही थी, तो हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया. होता क्या है, इसके साथ ही जहां हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जीडीपी और इंडिया की जीडीपी को कंपेयर करते हैं, तो जिस ब्लैक मनी के साथ में जो प्रोडक्शन में लग रही है, उसका कहीं पे डाटा अवेलेबल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ या प्रोडक्शन हमें दिखना चाहिए वो ऑफिशियल वे में नहीं दिख पाता है. इसलिए वो जीडीपी हमारी इंडिया की डाउन रहती है. तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट लगातार ये रहा है कि हम इकोनॉमी में कैश का लेवल कम करें और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल करें. और इसके लिए एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में लगभग 17 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश सिस्टम के अंदर फ्लो हो रहा है, जो चल रहा है. इसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस प्रोविजंस के साथ में आती है, कभी इंसेंटिव के रूप में आती है, कभी राइडर के रूप में प्रोविजंस लेके आती है, हार्श प्रोविजंस भी क्रिएट करती है. लॉन्ग बैक बात करें तो VDIS 1986 के नाम से एक स्कीम आई थी,
उसके बाद बात करें तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1997 के रूप में आई थी, एक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016 में आई थी, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2017 में भी। ये सब वो स्कीम्स है जिसके तहत की गवर्नमेंट ने मौका दिया था इंडियन पब्लिक को कि वो अपनी मनी को किसी भी तरह से डिस्क्लोज करे जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, इनकम के रूप में या एसेट के रूप में। साथ ही साथ गवर्नमेंट वेरियस टाइम्स के ऊपर हार्श प्रोविजंस भी लेके आती है ताकि कि हम रूल को अवॉइड करें, रूल को फॉलो करें। इसी कड़ी में डीमोनेटाइजेशन जो हम सबको पता है 8 नवंबर 2016 का जो था वो भी उसी कड़ी में था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को भी देखा जाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ये सभी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो ये सभी ट्रांजैक्शंस इन चीजों को कवर करते हैं। बट नाउ एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है, कैश से डिजिटल मोड की तरफ शिफ्ट हो रही है, और स्पेशली इज ड्यू टू कोविड-19 we have changed our habits and we started to doing the transaction by paying through Paytm, Google Pay or other banking channels. Maybe because of the security concept, but we have started this mode. In the routine, we all are doing the cash transactions in day and the night, many of the times. But if we know various provisions which are applicable and relevant and what are the limits for various sections for doing the cash transaction, it will be very helpful and guiding to us. And by abiding these rules, by knowledge of this rule, we can avoid any penalty provisions which may be arises either on us or onto our assessees. So friends, before to start the technical session, I request all the listeners to please send your queries in the chat box as the moderator has told you. We will try to cover these queries at the end of this session. हम जो सेक्शंस आज कवर करने वाले हैं उसमें जनरली 3 सेक्शंस के बारे में हमने हमेशा पढ़ा है जब से हमने सीए आर्टिकलशिप बिगिन की। 269SS लोन लेना, 269T लोन का रीपेमेंट करना और कैश पेमेंट 48(3). ये सेक्शन हम सिंस बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जिसने भी आर्टिकलशिप जब से ज्वाइन की, टैक्स ऑडिट का बेसिक टूल था और टैक्स ऑडिट में इसकी इंपॉर्टेंस आज भी बरकरार है, बल्कि आज तो इसकी और डेप्थ रिक्वायरमेंट हो गई रिपोर्टिंग की। तो इसके तहत हम वेरियस जो सेक्शंस आज कवर करने वाले हैं 269SS, 269T, 269ST जो रिसेंटली आया प्रोविजन है कैश इश्यू के बारे में, 48(3), 3A, रूल 6DD, एक 43(1) प्रोविजन जो कैपिटल एसेट्स के बारे में है। इसी तरह ट्रस्ट के लिए भी एक प्रोविजन आया है सेक्शन 13 में। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए भी एक सेक्शन 1023 में प्रोविजन है। 269SU जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में बताता है, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह कैश विड्रॉल पे TDS का प्रोविजन भी एप्लीकेबल है। फर्दर हम देखेंगे 44AD में क्या इंसेंटिव के साथ में गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है, 44AB में भी सपोर्ट किया है। वो मोटिवेट कर रही है कि हम किस तरह से ट्रांजेक्शन कैश में करना अवॉइड करें। 80JJAA, 80G, 80GGA, GGB, GGC, 13A और रूल्स आपके सामने हैं। तो हम इसको कवर करने के लिए आज आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर सेक्शन लेते हैं, अब जो स्टार्ट करने जाते हैं उस सेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें ये जो सेक्शंस ऑलमोस्ट 25 सेक्शंस या रूल्स हैं जिसको कि हम आज कवर करेंगे, और आई ट्राइड टू माय बेस्ट टू कवर ऑल दीज प्रोविजंस रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन एट ए वन प्लेस। और फ्रेंड्स, द टुडेज टॉपिक is especially relevant to the cash transactions only. Somewhere it is maybe the section cover many other things also, many more conditions also, but we had tried to restrict to ourselves to the level of the cash transactions. First of all, हम जो सेक्शन लेते हैं जो वेरी कॉमन है, मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम, इसकी हम बात करते हैं। यानी कोई भी लोन, वैसे तो बहुत कॉमन है, सब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होगा इस प्रोविजंस के बारे में। कोई भी लोन या डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम अगर हम कोई अदर देन ECS, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट अगर ले रहे हैं और उसका अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो वो वॉयलेशन है और वो हम नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, हम कैश में ले लें या बियरर चेक या क्रॉस चेक। दोस्तों, बियरर चेक और क्रॉस चेक हम सब जानते हैं। चेक में 3 तरह से, एक बियरर चेक भी होता है, एक क्रॉस चेक भी होता है, एक अकाउंट पे चेक भी होता है।
क्रॉस चेक में क्या होता है कि जब तक उसकी टाइम पीरियड है, से फॉर 3 मंथ्स के लिए अगर वो चेक की वैलिडिटी पीरियड है, तो उस दौरान वो चेक एंडोर्स होता रहता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरे को, यानी किसके अकाउंट में लास्ट जाएगा वो पता नहीं होता है एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक। जबकि अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट के केस में हमें पता होता है कि हमने जिसको इशू किया उसके खाते में ही ये चेक क्रेडिट होगा। तो विद दिस एस्पेक्ट अगर अपन बात करें तो हम कैश की श्रेणी में ही क्रॉस चेक को रखते हैं। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान देना और हमें क्लाइंट को एजुकेट भी करना है। नॉर्मली आपने देखा होगा रूटीन में वो 2 लाइन खींचते हैं चेक पे, वो भेज देते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। उस 2 लाइन के अंदर उनको अकाउंट पे भी लिखवाना है, हमें ये बताने की जरूरत है हमको। तो यानी अब हम बात करें सच सम डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, ये प्रोविजन हमारा 1984 में आया हुआ प्रोविजन है। और ओरिजिनली अगर इस प्रोविजन को हम बात करें तो 10,000 की लिमिट के साथ आया था, यानी 10,000 से कम तक हम अगर कैश में लोन ले सकते हैं। अब ये लिमिट 20,000 या इससे ज्यादा के लोन के ऊपर वॉयलेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है, वॉयलेशन लगा देती है। इसका ध्यान देना हमको। यहां दोस्तों 1 जून 2015 से एक नया वर्ड जोड़ा गया, स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम किसको कहते हैं? लोन और डिपॉजिट बहुत कॉमनली हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। स्पेसिफाइड सम कहा गया एनी सम रिसीवेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेवेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के लिए हम जो भी पैसा ले रहे हैं, अगर वो कैश में 20,000 या इससे ज्यादा ले रहे हैं तो इट इज कॉल्ड ए वायलेशन ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस। ये प्रोविजन दोस्तों सभी पे लगता है, वेदर इट इज ऑन द बिजनेस और अदरवाइज देन बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने वालों को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। एक विशेष बात जो इसमें ध्यान देने की है, वैसे तो सबको पता होगा, इसका फर्स्ट लिंक जहां पे ये कहता है द अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम, यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर लोन किसी एक आदमी से हमने 5,000 ले रखा है, डिपॉजिट अगर उस दिन का 5,000 रुपए है, यानी 10,000 ऑलरेडी हमारे पास में है, और बाई भी हम कोई प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में उससे 11,000 कैश में लेना चाह रहे हैं, तो इट इज द वायलेशन ऑफ द दिस सेक्शन। यानी तीनों का एग्रीगेट भी करके देख सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का भी एग्रीगेट किया जा सकता है, दोनों ढंग से इसको देखा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है हमें। अब हम इस सेक्शन की अगर बात करें तो ये एप्लीकेबल कहां कहां नहीं है। ये एप्लीकेबल नहीं है अगर हम लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से। इसके अलावा अगर कोई 2 पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है, दोनों की इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और साथ ही साथ उनकी इनकम नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, हालांकि इट इज वेरी रेयर एज ऑफ नाउ, क्योंकि हर कल्टीवेटर फार्मर्स का कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होता है और वहां पे कुछ ना कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडीआर इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है। तो क्या वो आउट ऑफ दिस डेफिनेशन रहेगा नहीं रहेगा, ये एक अलग इशू है, बट उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। इस ट्रांजेक्शन का अगर वोलेशन हो जाता है तो 271D जहां पे एक सेक्शन दिया उसमें कहा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट टेकन और एक्सेप्टेड तक की पेनल्टी लग सकती है अपने पे। अब 3CD में अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए 2 क्लॉज दिए हैं, 31A क्लॉज नंबर 31B, ये ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम आते हैं, मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट्स। ये सेक्शन भी 1984 से स्टार्ट हुआ था। ये सेक्शन भी बेसिकली मोर और लेस सिमिलर ही है, यानी जिस दिन हम लोन का रीपेमेंट करने जा रहे हैं या डिपॉजिट का पेमेंट करने जा रहे हैं या स्पेसिफाइड सम, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यहां स्पेसिफाइड सम अलोंग विद द इंटरेस्ट, लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट, डिपॉजिट अलोंग विद द इंटरेस्ट, यानी जिस दिन हम पेमेंट करने जा रहे हैं अगर उस दिन हमको देखना पड़ेगा उस एसएससी के अकाउंट में या उसको जिसको हम पेमेंट करना है उसके अकाउंट में 19,999 से ज्यादा का बैलेंस तो नहीं हो रहा है अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर हो रहा है तो हम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, उसको बियरड चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से करना पड़ेगा या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी प्रेस्क्राइब है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे, उनसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि अगर किसी से हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एडवांस लिया हुआ है और वो अमाउंट मान लीजिए 51,000 सपोज हमने ले रखा है और किसी कारण से वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो रहा है, हमें वापस रीपे करना है उस एडवांस लिए हुई स्पेसिफाइड सम के अगेंस्ट में जो पैसा लिया हुआ हमने, तो उसको हम कैश में रीपे नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड सम को क्यों कवर किया उन्होंने यहाँ पे 2015 में। पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी के रेफरेंस में ट्रांजेक्शन कैश में दिखा दिया जाते थे,
जब केस स्क्रूटनी में आता था, कैश के लिए कैश दिखा देते थे बुक्स के अंदर, किसी के नाम पे दिखाना है तो ऑडिट के दौरान हम क्या करते थे कि अच्छा कैश शॉर्ट पड़ रहा है बुक्स में, और किसी के नाम से जमा कर देते थे। जब केस स्क्रूटनी में आ जाता था तो पूछा जाता था कि भाई ये कैश क्यों लिया, किस लिए लिया, तो हम क्या दिखा, कुछ लोग ये दिखा देते थे ड्यूरिंग द असेसमेंट कि साहब ये फला प्रॉपर्टी को बेचने के अगेंस्ट में पेमेंट लिया हुआ है, और वो डिपार्टमेंट बड़ा इजीली निकल जाता था, केस हो जाता था एक्चुअली। तो उस चीज को कर्व करने के लिए वो इसको इस तरह से लेके आए, स्पिट्स हमको यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगेन ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं है, अगर हम कोई लोन जो गवर्नमेंट से लिया है, बैंकिंग कंपनी से लिया है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से लिया है, कोऑपरेटिव बैंक या गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का भी अगर है तो वो भी इसमें शामिल है। यहाँ भी पेनल्टी है 271E सेक्शन में, टू द एक्सटेंट ऑफ द इक्वल अमाउंट, जो अमाउंट है उतने तक की पेनल्टी लगेगी। इसकी भी रिपोर्टिंग हमको फॉर्म 3CD में करनी होती है, इसके लिए क्लॉज है 31C, 31D, 31E, इन सारे क्लॉज में। अब देखिए आप, लोन लेना और देना, इसके लिए 5 क्लॉजेस दिए हुए हैं, एक क्लॉज के अंदर 5 क्लॉज ऐड किए हैं जहां पे कि हमको इसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है 31 इतने में खत्म हो गया, ये करीब 9 प्रोविजंस के साथ चलता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शंस, 269ST सेक्शन जिसकी बात करते हैं, ये रिसेंटली अभी 1/4/2017 से आया हुआ प्रोविजन है। इस प्रोविजन में ये बताया गया है कि नो पर्सन शैल रिसीव एनी अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और ECS और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। किससे नहीं लेना है, किन सिचुएशन में नहीं लेना है, 3 तरह की सिचुएशन बताई है, तीनों सिचुएशन इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे और in respect of a single transaction, and the third one is from the one event or a occasion from a person. From a person ध्यान देने की बात है यहाँ पे दोस्तों, जिसको हमको देखना है। ये सेक्शन जैसे मैंने बताया 1/4/2017 से एप्लीकेबल है, इसमें भी पेनल्टी प्रावधान है। पेनल्टी यही है, इक्वल टू द अमाउंट अगर हम लेते हैं। 3CD में भी इसकी भी रिपोर्टिंग होती है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इसमें भी 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं जहां पे इसकी रिपोर्टिंग है। क्लॉज 31 में ही है अलग अलग प्रावधान जहां पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जब ये प्रावधान 1/4/17 से एप्लीकेबल किया गया था 269ST, उसके पहले एक प्रावधान 2061D यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रूप में चल रहा था। वहां ये सर्टेन ट्रांजेक्शंस के बारे में दिया गया था कि अगर 2 लाख से ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन है तो वहां TCS काटना जरूरी होता है। उस प्रोविजन को यहाँ पे खत्म किया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई। इस तरह से ये प्रावधान यहाँ पे लाया गया। ये एप्लीकेबल किन पे नहीं है, ऑन द रिसीव बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एटसेट्रा, या जो ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ द 269SS सेक्शन के ट्रांजेक्शन है उनके रेफरेंस में नहीं होता ये ट्रांजेक्शन, ध्यान रखने की बात है। एक NBFC और HFC के रेफरेंस में भी एक सर्कुलर 3/7/2017 को आया। उस सर्कुलर के माध्यम से भी उन्होंने, उनके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी सिंगल ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो उन्होंने डिफाइन किया 1 इंस्टॉलमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन। अदरवाइज क्या हो रहा था, एक लोन दिया तो वो एक लोन सिंगल ट्रांजेक्शन के रूप में आ रहा था जब बिगिनिंग में, तो उसमें क्लैरिफिकेशन आया और क्लैरिफिकेशन आकर के it is become the easy for the NBFC and HFC both। अब दोस्तों अगर हम इसको कुछ एग्जांपल के रूप में लेने की कोशिश करते हैं आपके सामने, पहला बात आती है जिसकी हम बात करें, फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, यानी एक ही आदमी से एक ही दिन में, चाहे वो ट्रांजेक्शन मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो। फॉर एग्जांपल किसी एक आदमी ने 3 इनवॉइसेज इश्यू कर रखे हैं, एक इनवॉइस 1 लाख का है, एक 1.5 लाख का है, एक 50,000 का है, यानी टोटल 3 लाख का है, लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट कैश में एक ही दिन आया है, तो इट इज द वायलेशन, क्योंकि वो कवर हो गया बाय ए पर्सन इन ए डे। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट आ चुका है तो वो कवर्ड हो जाता है। सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करें हम, सपोज इसी तरह में अगर एक ही इनवॉइस है वो 5 लाख रुपए का है, अब उसका पेमेंट कैश में आया है, और वो कैश में आप मान लीजिए इस तरह से पेमेंट आया, 1.5 लाख एक बार आया अलग अलग डेट में, 1,70,000 एक बार आया और 1,80,000 एक बार आया, यानी 5 लाख रुपए कैश में आया, तो ये ट्रांजेक्शन भी आपका वायलेशन ऑफ दिस रूल्स आ गया, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में कैश रिसीव हुआ है 2 लाख या इससे ज्यादा। तीसरी बात आ गई, अगेंस्ट द वन इवेंट और द वन ओकेजन। आज किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए हम और ऐसी इमरजेंसी पड़ी, तुरंत हमको पैसे जमा कराने पड़े, हमने 4 लाख रुपए कैश में जमा करा दिए फॉर एग्जाम्पल। वो 4 लाख रुपए जो कैश में जमा करा दिए, इट इज कॉल्ड ए वन इवेंट और ए वन ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। या एक कोई मैरिज सेरेमनी है, इवेंट वाला है, इवेंट वाले को हायर किया हमने, वो आपके घर की मैरिज सेरेमनी को सेलिब्रेट करा रहा है, उस फंक्शन के चार्जेस आपसे पूरे ले रहा है, एंड दिस अमाउंट इज बिकम मोर देन 2 लाख रुपीज एंड यू आर पेइंग दिस अमाउंट इन ए कैश, देन इट इज आल्सो ए वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजंस। ऐसे टाइम पे जब मैं स्पेशली थर्ड वाले
केस की सिचुएशन की बात करता हूँ, वन इवेंट या वन ओकेजन की बात करते हैं, और कई बार स्पेशली मेडिकल के केस में ऐसी सिचुएशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ऑल्दो एज ऑफ नाउ सारे बड़े हॉस्पिटल्स ने कैश में पेमेंट लेना बंद कर दिया है टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ द रिपोर्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उनको सर्टेन प्रोविजंस में है, दूसरे रूल्स में वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है इस तरह के ट्रांजेक्शन को, तो उन्होंने इसको अवॉइड कर दिया है। बट कहीं ये सिचुएशन भी रहती है तो हमें कोशिश करें, अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ है तो हम एक नाम से जमा नहीं करा के पे ही हम एक से ज्यादा बन जाए, 2 से ज्यादा बन जाए, ताकि 2 लाख के अंदर वो लिमिट रह जाए। लाइकवाइज कोई मैरिज एक्सपेंसेस या किसी को भी हम कवर कर सकते हैं। अभी तक जो हमने प्रोविजन पढ़े वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो रहे थे, यानी वो प्रोविजन एप्लीकेबल थे बिजनेस और नॉन बिजनेस, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, जो हमें हमारे एसएससीज को ऑलवेज बताने का ध्यान रखना है। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस ऐसे लिखे हैं, ये भी ओल्ड प्रोविजंस है। रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट इन कैश, सेक्शन 48(3). 48(3) के ही प्रोविजन सेक्शन 58(2) में भी लगते हैं, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कुछ ऐसे डिडक्शन है जिसके लिए हम एलिजिबल है और अगर हम वो ले रहे हैं, और वहां भी अगर एक ही दिन में एक ही आदमी को 10,000 से ज्यादा, यानी 10,000 तक अलाउ है। यहाँ पे हमने पहले के प्रोविजन में देखा वहां 2 लाख या इससे ज्यादा था, यहाँ अप टू 10,000 अलाउड है, यानी थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान देने की बात है, ध्यान रखने की बात है। तो एक ही पर्सन को एक ही दिन में अदर देन ईसीएस या अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के द्वारा अगर पेमेंट किया गया है, कैश में पेमेंट किया गया है, तो वो वॉयलेशन कहलाएगा। ये लिमिट 1/4/17 से 10,000 रुपए हो गई, और उसके पहले ये लिमिट 20,000 रुपीज थी। इसकी भी हमें रिपोर्टिंग 3CD में क्लॉज 21D के अंदर करनी पड़ती है। ऐसे ट्रांजेक्शन है तो जहां ऑडिट है वहां करनी पड़ती है, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें एक एक्सेप्शन दिया उन्होंने कहा अगर कोई ट्रक फ्रेट का पेमेंट है फॉर प्लेइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरीज, तो ये 10,000 की जगह लिमिट 35,000 की हो जाती है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इस प्रोविजन के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक ईयर के अंदर जिस साल क्या करता था, स्टेच्यूज चलता है एक कदम, और हम चलते हैं, हमारा एसएससी चलता है उससे एक कदम और आगे, और फिर उसके बाद उसका अगेन तोड़ निकाल के गवर्नमेंट एक नया रूल ले आती है। इसी तरह 48(3) एक प्रोविजन के रूप में आया। इसमें उन्होंने कहा, उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। बाय द वे हमने पिछले साल में कोई एक्सपेंडिचर बुक किया, वो लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बुक किया और उसका 15,000 रुपीज पेमेंट बनता था, हमने 31 मार्च के पहले प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी बुक कर दी, और करंट ईयर में हम वो पेमेंट एक ही दिन में उस आदमी को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा अमाउंट इनकम में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ डिसअलाउंस नहीं होगा, या इनकम में ऐड होगा। काइंडली नोट दिस पॉइंट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर तो हम पिछले साल ले चुके हैं, तो अब एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, अब ये इनकम में ऐड होगा। हमें कंप्यूटेशन में ये ध्यान देना है। ये प्रोविजन भी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वालों पे एप्लीकेबल है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोनों पे एप्लीकेबल है। सिमिलरली जैसे हमारा पास 48(3) एप्लीकेबल था, इसकी भी लिमिट सेम वही 20,000 थी पहले, उसको 10,000 कर दी गई। इसकी भी रिपोर्टिंग फॉर्म 3CD के क्लॉज 21D के अंदर हो रही है। यहाँ भी फ्रेट के बारे में वही प्रावधान दिया गया है 35,000 का, जिसका हमको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसा बताया गया है कि जो भी हम ये कैश पेमेंट करते हैं अंदर सेक्शन 48(3) या 40(a)(3)(a), उसके लिए रूल 6DD की सिचुएशन में अगर वो कैश में पेमेंट 10,000 या इससे ज्यादा किया गया है तो वो अलाउड है। वो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले हम देखें तो अगर पेमेंट मेड टू RBI, SBI, LIC और एनी कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, पेमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हम जानते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर जानते हैं, या बैंक टू बैंक पेमेंट किया गया है, या बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा पेमेंट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, यानी अगर हमारे पास किसी पार्टी से हमने परचेज किया हुआ है, उसकी लाइबिलिटी है हमारी बुक्स में, सब्सिक्वेंटली हमने उसको कुछ सप्लाई किया है, तो सप्लाई के अगेंस्ट में हम उस लाइबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा, वो वॉयलेशन नहीं है। इसी तरह अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं कल्टीवेटर को, ग्रोवर को, प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, फॉर पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा, वो भी इसमें कवर्ड है। कोटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को अगर कवर कर रहे हैं, बाय द वे वो विदाउट एड ऑफ पावर अगर अपना प्रोडक्शन कर रही है कोटेज इंडस्ट्री, तो उनका पेमेंट भी इसमें कवर किया जाता है। फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर where the payment is made to a person who reside in such a town village, यानी वो ऐसी जगह पे रहता है जिसको हमको पैसा देना है, वहां पे कोई बैंक ब्रांच ही नहीं है, and the person is residing at that place,
तो वो भी, उसको भी हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक और प्रोविजन है, कोई एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर हम उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी अलाउड है, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपीज दी गई है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। या हमने किसी एम्प्लॉय को टेम्परेली कहीं पोस्ट हुआ है, वो 15 दिन से ज्यादा के लिए किसी और प्लेस पे शिफ्ट हुआ है और उस प्लेस पे कोई बैंक नहीं है, तो वहां भी हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो अब तक हम बहुत काम में लेते थे हमारे असेसमेंट के दौरान, वो ये प्रोविजन था कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रांजेक्शन के दिन आइदर बैंक वर क्लोज्ड और देयर इज ए हॉलीडे ऑन द बैंक और सम स्ट्राइक ऑन दैट डे, so that transaction were also covered, but from 29/1/2020 यानी 29 जनवरी 2020 से इस सब क्लोज जी ऑफ रूल 6DD को हटा दिया गया, यानी अब हम ये रिबेट नहीं ले सकते हैं, हम इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। यानी अगर कहीं बैंक बंद है लेकिन बैंक मौजूद है वहां पे उस सिटी में, तो हम इस प्रावधान का फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह अगर हमने एजेंट को पेमेंट किया तो वो भी अलाउड है, या हमने ऑथोराइज डीलर या मनी चेंजर को अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी या उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो भी अलाउड होता है। ये रूल 6DD जो 40A3 और 40A3A दोनों ही केस में एप्लीकेबल है, जिसमें हमको छूट मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोविजन की बात करता है सेक्शन 43(1), जिसका सेकंड प्रोविजो हमें एक राइडर के रूप में देता है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं और उस एसेट का पेमेंट 10,000 या इससे ज्यादा, अदरवाइज देन बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक या ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के कर रहे हैं, और इन ए डे और टू ए वन पर्सन, यानी एक ही आदमी को एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख लिया, 40A3 में कवर हो गया, वो 40A3A में कवर हो गया। अब नाउ अबाउट द कैपिटल एसेट परचेज, एक तरह से तो एसेट के परचेज के केस में अगर हम 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर एक प्लांट एंड मशीनरी किसी ने खरीदी है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज है, और हमने टोकन मनी इनिशियली 20,000 रुपीज कैश में दे दी है, एंड सब्सिक्वेंटली 1,80,000 रुपीज हमने जब उसने डिलीवरी किया तो चेक से पेमेंट कर दिया। इस केस में जो डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं वो 1,80,000 पे ही क्लेम कर पाएंगे, 20,000 पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान देना है। इसकी भी रिपोर्टिंग फॉर्म 3CD में हमारी होती है, क्लॉज नंबर 18, जहां डेप्रिसिएशन का कॉलम है, जहां फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया जाता है, वहां पे हमको इसको रिपोर्टिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोविजन की बात करेंगे, ट्रस्ट पे एप्लीकेबल है। दोस्तों क्या हुआ, ट्रस्ट में भी एक प्रोविजन चल रहा है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है कॉर्पस फंड लेते हैं, वो कॉर्पस फंड दो तरीके से लिया जा सकता है। वन इज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम कैपिटल कॉर्पस भी कह सकते हैं, और दूसरा विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो जो कॉर्पस फंड के लिए जो पैसा लिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन हम स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए करते हैं, और उसको डायरेक्ट हम लाइबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो अदर देन कॉर्पस अमाउंट है उसको हमको हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में लेना होता है, और उसमें एक कंडीशन दी हुई है कि 85% ऑफ द सच अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। अगर बाई भी हम चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर ईयर में, तो हमें सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में आफ्टर विद सब फॉर्मेलिटीज हम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसको हमको यूटिलाइज करना होता है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, और इसकी एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन का तरीका है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट होती है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, बट समझना यह है हमें कि हम जो ये 85% यूटिलाइजेशन अमाउंट है, अगर वो अमाउंट एक ही दिन में एक ही आदमी को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं हम, और वो कैश में है या बीरर चेक है या अकाउंट पे चेक है, यानी एनी अदर मोड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ईसीएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो वो एप्लीकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हम देखिए अब यहाँ पे भी हम कवर हो गए, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हम कवर हो गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम कवर है। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है हमारा सेक्शन 11 सेक्शन में, जहां पे कि हमको एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में कहा गया है, वहां कवर करता है। इसी तरह दोस्तों एक और प्रोविजन जो इसी के बारे में है, जो सेक्शन 1023C, दो तरह के प्रोविजन होते हैं। ये जनरली प्रोविजन जो एप्लीकेबल है ये इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो मैंने 1 से 4 तक के मैं दिए हैं। कोई फंड या इंस्टीट्यूशन है जिनका पर्पजेज चैरिटेबल पर्पजेज है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है या जिसका पर्पज रिलीजियस पर्पजेज और रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज है। और
यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोई हॉस्पिटल है, या लाइक दैट कोई अदर इंस्टीट्यूशन है जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस, ऐसे अलग अलग जो सर्टेन सेक्शंस है जिसके तहत इनके बारे में बताया गया है, उन सेक्शंस के तहत रजिस्टर्ड अगर कोई ऐसे ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल एक्सेट्रा है, उनका भी 85% यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। और 85% यूटिलाइजेशन को देखने के लिए, यानी एनी पेमेंट इज मेड बाय मोर देन 10,000 रुपीज इन कैश टू ए पर्सन इन ए डे, तो वो भी हम 85% यूटिलाइजेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। ये देखने की बात है। ये प्रोविजन भी 1/4/18 से एप्लीकेबल हुआ है। पिछला प्रोविजन जिसकी हमने बात करी थी अभी, वो प्रोविजन भी यानी ट्रस्ट के बारे में जिसकी हमने बात करी सेक्शन 11 में, वो भी 1/4/18 से एप्लीकेबल किया है, और ये वाला प्रोविजन भी, दोनों एक साथ ही पैरेलल आया। तो देखिए गवर्नमेंट का इंटेंशन आप देखने की कोशिश करिए। ये प्रोविजन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ट्रस्ट के बारे में। आजकल मोस्टली हम लोगों के पास में कोई ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड मिल जाएगा, हम सब लोगों के पास में किसी न किसी एसएससी का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो वहां पे 85% यूटिलाइजेशन भी हमको पता होता है कि हमें करना होता है, उसको एसएससी को करवाना होता है। बट वहां पे एक्चुअल में स्पेशली छोटे जो ट्रस्ट होते हैं वहां पे नहीं हो पाता है। कोई फैमिली में बना लेते हैं ट्रस्ट और उसको सब्सिक्वेंटली यूज करने लग जाते हैं। हो सकता है वो बैंक इंटरेस्ट से चला रहे हो सकता है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से चला रहे हो। इस तरह के ट्रस्ट में क्या होता है, जिस दिन वो ऑडिट के लिए आता है तो उस दिन हम कहते हैं साहब 85% आपका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो कुछ यूटिलाइजेशन कर दिए। फिर वो कुछ कैश में ट्रांजेक्शन उन्होंने किए हुए होते हैं, वो आपको दिखा देते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमें ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांजेक्शन एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है दोस्तों। अगेन हम एक सेक्शन है 269SU जिसकी हम बात करते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उस पर अप्लाई करता है ये सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस सेक्शन में ये कहता है अगर किसी बिजनेसमैन की टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ या इससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो उसको he shall provide some other electronic mode facility which they have mentioned in the rule 119AA जो नीचे दिए हैं, जिसको हम डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भीम यूपीआई या यूपीआई क्विक रेस्पॉन्स कोड, यूपीआई क्यूआर कोड या भीम यूपीआई क्यूआर कोड के रूप में देखते हैं। इस तरह की फैसिलिटी देना जरूरी है। अब ये एप्लीकेबल 50 करोड़ से ऊपर टर्न वालों पर इनिशियली सबके लिए लाया गया था, फिर हेजिटेशन हुआ इसके ऊपर क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे, और देखा जाए तो ज्यादा वॉल्यूम में बिजनेस करने वाले जनरली B2B बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस उनके ट्रांजेक्शन चलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, वहां पे कैश में ट्रांजेक्शन जनरली नहीं होते हैं। तो उन्होंने इस प्रावधान को थोड़ा सा चेंज किया और एक रिलैक्स करके लाए इस प्रावधान को, और रिलैक्स करके इस प्रावधान को ये लेके आए, इन्होंने कहा कि अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है ऐसे लोगों पे जिनके ट्रांजेक्शन B2B 95% से ज्यादा ऑफ ऑल रिसीट्स, यानी उसकी टोटल रिसीट्स का 95% से ज्यादा ट्रांजेक्शन अदर देन कैश में हो और B2B हो, यानी B2B वाले के ट्रांजेक्शन 95% से ज्यादा अदर देन कैश में है, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। बट हम यहाँ बात कर सकते हैं जैसे डी मार्ट या इस तरह के और भी रिटेल आउटलेट हो सकते हैं, बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, लाइफ स्टाइल, डायरेक्ट सेल्स जो कंज्यूमर को होती है, वहां पे जहां पे भी है इस तरह की कैश ट्रांजेक्शन, वो इसमें कवर हो गए। तो उनको इस तरह के ये 3 ऑप्शंस दिए हैं जो उनको रखना जरूरी है। इस सेक्शन में अगर ये आपने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है, ये कहा है फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, ये नहीं कहा कि आप कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, काइंडली एंश्योर दिस, है ना। अगर आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, डिस्प्ले कर दी है, उनको बता दी है, तो आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। ये प्रावधान एप्लीकेबल हो गया आपके ऊपर 1 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। हमें विशेष रूप से बताना है, रिसेंट का ट्रांजेक्शन है, इस पे भी एक 271D में पेनल्टी है, पर डे 5,000 रुपीज, यानी जितने दिन तक हम इस फैसिलिटी को डिस्प्ले नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हमने ये कर रखा है, तो पर डे 5,000 रुपए का पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट प्रावधान की हम बात करें, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। अभी रिसेंटली बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, रिसेंटली आपने भी देखा होगा, इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आया है, और बैंक जनरली इसके ऊपर है, जिनके ऊपर कि बैंकों पर ये रिपोर्टिंग के रूप में आया है ना। इनडायरेक्टली हम देखें तो एप्लीकेबल सभी पे है, और एप्लीकेबल कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। ये प्रावधान 30/6/2020 तक कुछ और था। दिस प्रोविजंस कम इन इफेक्टिव फ्रॉम 1/9/2019, बट इट वाज समवेयर up to 30th June 2020. It is little bit changed, and now it is changed from 1/7/2020. And what is the change I am discussing with you? ऐसा कोई असेसी या बिजनेसमैन जिसने कि लास्ट 3 साल से रिटर्न नहीं भरी है,
यहाँ पॉइंट ये है कि 3 साल नहीं भरी है, किसी भी 1 साल नहीं भरी है, यानी अगर बाई में किसी 1 साल की भी नहीं भरी है, जस्ट प्रीवियस 3 ईयर, तो उस केस में उसकी 20 लाख या इससे ज्यादा का अगर वो कैश बैंक से निकालता है तो उस पर 2% टीडीएस काटा जाएगा, यानी 2,20,000 से ज्यादा और 1 करोड़ से कम का अगर वो कैश विड्रॉ करता है तो 2% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और जो ही वो 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करता है उस बैंक से तो उसके ऊपर 5% की रेट से टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। लेकिन जो रेगुलर रिटर्न भर रहे हैं और बाई भी उन्होंने भी कैश विड्रॉल किया है बैंकों से, उस केस में 1 करोड़ तक कोई भी टीडीएस लाइबिलिटी नहीं है। और 2 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर अगर उसने कैश विड्रॉल है तो उस केस में उस पर 2% टीडीएस की लाइबिलिटी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर बाई वे पैन नंबर भी नहीं है किसी का, यानी जिसने कैश विड्रॉल किया सपोज उसका पैन नंबर भी नहीं है, तो उस केस में 20% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अभी कोविड-19 में हम सब ने देखा कि वित्त मंत्री हमारी सीतारमन जी ने रिलीफ के रूप में टीडीएस की जो रेट है 2% या 5% एज द केस में भी, उसमें 25% का डिडक्शन दिया उन्होंने, यानी कहा है कि या तो 1.5% या 3.75% हम टीडीएस डिडक्शन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोई एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है बैंकों को जिससे बैंक ये चेक कर सकता है कि इसकी रिटर्न पिछले 3 साल में गई है या नहीं गई है, यानी टीडीएस काटने के लिए उनको इतना टेक्नोल सेवी किया जा रहा है, इतना उसको टेक्निकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जा रही है कि वो तुरंत टैक्स काट लें जो ही पोजीशन बनती है। अब ये प्रावधान किन पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कोई गवर्नमेंट है या बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी है उस पर भी नहीं है, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है उन पर भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनको बहुत सारे रेगुलर इनको एग्जेम्पशन दिए, इनका कैश विड्रॉल अगर ये करते हैं तो इन पे एप्लीकेबल नहीं है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव भी देके लोगों को कैश ट्रांजेक्शन को डीमोटिवेट कराने के लिए कोशिश की है कि ताकि डिस्करेज हो, डीमोटिवेट हो और वो कैश में ट्रांजेक्शन करना अवॉइड करें। सबसे पहले उन्होंने ये प्रावधान बेसिकली तो आपका 1/4/2016 से आया था और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ये प्रावधान के रूप में आया था, जब हमको डिजिटल पेमेंट की तरफ डाइवर्ट किया गया था। इनिशियली ये प्रावधान था और आज भी है कि अगर हम कोई प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का है जिसके अंदर कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या हमारे एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने की जरूरत है, अगर उसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ या 2 करोड़ तक की लिमिट इसको एक्सटेंड कर दी गई है, तो उस पर 8% की रेट या एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर से उसको टैक्स देना होता है। यहाँ पे उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया, अगर बाय द वे आपका ट्रांजेक्शन ईसीएस से या अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट से है तो ये 8% की जगह रेट 6% ही हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने की है, यानी रेट 6%, 2% एक बड़ा बेनिफिट उन्होंने स्मॉल एसएससीज को, मीडियम कैटेगरी के एसएससीज को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इट इज वाज ए वेलकम स्टेप गिवन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या होता है, कंफ्यूजन, जिस दिन हम रिटर्न भरते हैं उस दिन हम देखते हैं कि उस एसएससी का ट्रांजेक्शन का टर्नओवर जो आया, उसका रियलाइजेशन जो आया, वो कितना चेक से आया, कितना कैश में आया, हो सकता है कुछ ड्यू भी रह गया हो। उस केस में क्या किया जाए, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके सामने। बाय द वे किसी का टर्नओवर 50 लाख रुपीस है और अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न उसका मान लीजिए 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, 48 लाख रुपीस आ चुके हैं उसके, यानी 45 लाख तो उसके चेक के द्वारा आए या ईसीएस से आए या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आए हैं, और कैश में 3 लाख रुपीस आए हैं उसके पास में और 2 लाख आउटस्टैंडिंग है। तो ये 2 लाख रुपए को भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन के साथ में बताया है कि इसको भी वो कैश के रूप में मानेंगे, यानी 45 लाख रुपए पे तो आपको 6% की रेट से आप टैक्स दे सकते हैं और रिमेनिंग 5 लाख रुपीस के ऊपर आपको 8% की रेट से टैक्स देना है रिटर्न भरते टाइम, ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह एक और प्रोविजन वो लेके आए हैं 44AB, हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा खुश होते हैं 44AB सेक्शन की, जहां भी बात होती है कि इट इज ए ब्रेड एंड बटर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक तो बैंक ब्रांच ऑडिट और दूसरा 44AB टैक्स ऑडिट जिसकी हम बात करते हैं। प्रोविजन ये है कि लास्ट टाइम जब हमारी बजट जब स्पीच आई थी, उस बजट स्पीच के अंदर उन्होंने जब ये स्पीच दिया था अपना भाषण, उसमें कहा था उन्होंने कि हम 44AB में टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर रहे हैं, और बड़ा मीडिया में उस टाइम पे इमीडिएटली जो रेस्पॉन्स आता है वो आया कि जनरल लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, और हमारे प्रोफेशनल में भी थ्रू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू चला कि ये क्या हो गया, इससे प्रोफेशन को अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। बट
जब ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने प्रिंट आउट आए या हमने देखा तो हमें पता लगा कि उसके अंदर कुछ राइडर दिया उन्होंने, और वो राइडर बहुत जेन्यून है। वो ये राइडर दिया उन्होंने, यदि किसी का टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उसको ऑडिट नहीं करानी है 44AB में, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस बताई है उन्होंने। पहली कंडीशन ये बताई है उनकी कैश रिसीट, यानी टोटल रिसीट कैश की बात कर रहा है वो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सेल ओनली, ये भी कवर कर लेता है अगर हमने कोई लोन लिया है या कोई कंसिडरेशन दिया है फिक्स एसेट्स के लिए, या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है, या एक्सेट्रा, इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो उसका 5% से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं आना चाहिए उसके पास में, कैश में रिसीव नहीं होना चाहिए टोटल रिसीट्स का। एट द सेम टाइम दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है, आप समझिएगा, यानी रिसीट पे भी 5% की बात कही गई है, और इसी तरह से अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वहां भी 5% से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। ये कैश पेमेंट एक्सपेंडिचर का ही नहीं है, परचेजेस का ही नहीं है, फिक्स एसेट्स की भी बात करता है, कोई लोन का रिपेमेंट करते हैं उसकी भी बात करता है, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं उसकी भी बात करता है, या और कोई भी इस तरह का पेमेंट है तो उसकी भी बात करता है। तो अब देखिए, गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन चेक से करें, अकाउंट पे चेक से करें, बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से करें, बैंक चैनल से करें। अगर ऐसा करते हैं तो एसएससी को ये बेनिफिट है कि उसको ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखना, ये लिमिट जो है इंडिविजुअली देखी जाएगी। 5% की जो सीलिंग है हमको उसको इंडिविजुअली देखना है, यानी किसी भी एक कैटेगरी में अगर उसका चेंज हो गया तो आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या ड्यूरिंग द ईयर आप सोच सकते हैं द मंथ ऑफ मार्च, सपोज किसी के ट्रांजेक्शन को इस तरह से असेस करवाएं, आप क्लाइंट आपके पास आता है, वो असेस करवाना चाहता है कि सर क्या मेरी ऑडिट 5 करोड़ की लिमिट के हिसाब से, 5 करोड़ टर्नओवर के हिसाब से रहेगी या नहीं रहेगी, और वहां आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन पे चल रहा है ये 5% की सीलिंग के आसपास, तो आप कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शन चेक के द्वारा कर सकते हैं जो परसेंटेज में ओवरऑल बढ़ जाए, कैश ट्रांजेक्शन परसेंटेज कम हो जाए। इस तरह से आप कुछ पोजीशन अगर आपके अकाउंट्स परमिट करते हो तो कर सकते हैं। ये प्रावधान भी हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वालों पे ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करें, ये भी रेस्ट्रिक्ट करता है हमको कैश में ट्रांजेक्शन के लिए। सेक्शन 80D, जिसमें 4 तरह के पेमेंट परमिटेड है, जिसकी कि हमको डिडक्शन मिलता है हेल्थ के लिए। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, दूसरा कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स या अदर नोटिफाइड स्कीम्स, या मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्चा किया तो वो भी अलाउ है। इस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपए अलाउ किए गए हैं एक्चुअली इसके अंदर। तो इन्होंने कहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 80D2B, इस सेक्शन में रेफरेंस दिया है, उन्होंने कहा है मैक्सिमम कैश पेमेंट 5,000 तक का, एंड दैट इज आल्सो रिलेट टू ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे अगर 5,000 तक का खर्चा किया तो वो कैश में अलाउ हो सकता है। एंड द रिमेनिंग पेमेंट, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम है या कॉन्ट्रीब्यूशन है या मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो पेमेंट अगर हम अकाउंट पे ही चेक से ही करेंगे तो ही हमें ये रिबेट मिल सकती है। ये रिबेट के लिए अब क्या हो गया, अभी रिसेंट कोविड-19 के तहत हमारे बहुत सारे एसएससी के, हमारे पास भी फोन आए, आप लोगों के पास भी आए होंगे, जिनको की मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू थी जिन लोगों की, और उनके पास में नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, और नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होने से वो उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्वेरी आई कि क्या करें हम इस केस में, क्योंकि हमें प्रीमियम देना भी जरूरी है ताकि हमारी वो कंटिन्यूटी रहे मेंटेन पॉलिसी की। तो ऐसे केस में एजेंट ने पेमेंट कर दिया होगा, हो सकता है हमारे एसएससी ने उसको कैश में पेमेंट कर दिया हो, तो हम उसको गाइड करें कि वो कैश पेमेंट तो वापस ले ले और उसको चेक से पेमेंट कर दे उस एजेंट को, तो हम इस रिबेट को लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और प्रावधान है 80JJAA, ये 1/4/16 से थोड़ा इसको चेंज किया गया है, पहले भी ये प्रावधान था, बट रिसेंटली मैं इसको बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कवर करने की कोशिश करूंगा। प्रावधान बेसिकली ये है कि अगर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो पहले थे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एट द सेम टाइम, उसके सर्टेन कंडीशंस है, सर्टेन सिचुएशन है जो दी गई है, वो हम सेक्शन में देख सकते हैं। उसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है कि जो एम्यूलमेंट्स का हम पेमेंट करेंगे दैट शुड बी पेड अदरवाइज देन कैश, तो ही हमको डिडक्शन मिलता है, रिबेट मिलती है। और वो डिडक्शन 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी फॉर एग्जांपल पिछले ईयर में आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर एग्जांपल जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपका मान लीजिए 10 लाख रुपीज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, उस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% आपको 3 असेसमेंट ईयर्स, यानी एक दिस द फर्स्ट करंट ईयर जिसमें आप इसको असेसमेंट ईयर में इसको आपको कंसीडर कर रहे हैं वो, और नेक्स्ट 2 असेसमेंट ईयर तक आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर हम हमारे क्लाइंट को ये चीज बताएं कि ये एक प्रोविजन है जिसमें अगर वो
अदरवाइज देन कैश पेमेंट करे, यानी कि वो पेमेंट अकाउंट पे चेक से करे, बैंक ड्राफ्ट से करे, आईसीएस से करे, या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो प्रेस्क्राइब्ड है उसके द्वारा पेमेंट करे, तो उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो 80JJAA हम यहाँ जो देख रहे हैं सिर्फ इस रेफरेंस में देख रहे हैं, बाकी कंडीशन दोस्तों अपने को थोड़ा डिटेल में सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन हम बात करते हैं ATG, ATGGA, GGB, GGC। ये डोनेशन के बारे में है प्रावधान। सबसे पहला ATG हम सबको पता है, इसमें जो भी हम डोनेशन देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, एक लिस्ट दी हुई है, तो उनको जो पेमेंट देते हैं उसकी छूट हमें ATG में मिलती है विद सर्टेन, उसकी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट वगैरह क्राइटेरिया है। उसमें एक कंडीशन ये भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट की है, वो कंडीशन 1/4/12 से लगाई थी जब ये 10,000 की लिमिट थी, एंड नाउ फ्रॉम 1/4/2007 दे हैव रिड्यूस्ड द लिमिट एंड मेंशन द लिमिट नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज। इफ वी आर मेकिंग द पेमेंट इन कैश more than 2,000 rupees in a cash, then we are not eligible to take the rebate under section ATG। यानी अगर हम बाई वे कैश, क्या होता है, हम सपोज इस्कॉन टेम्पल चले गए देखने और वहां हमने उसकी फैसिलिटी देखी तो हमारी इच्छा हो गई वहीं पे कि चलो आज इतना अच्छा ये काम करता है, हम यहाँ पे कैश डोनेशन देते हैं, या किसी और जगह भी जा सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल तक मैंने एग्जांपल के नाम लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे है, बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे अच्छी सर्विसेज, अच्छी चैरिटेबल एक्टिविटीज हो रही है। वहां पे गए और आपने वो एक्टिविटी देख के लगा और आपने वहां पे कैश देके आ गए 5100 रुपए, तो आपको यहाँ पे टोटल 2,000 से ज्यादा का ATG में रिबेट नहीं मिल सकती है, अगर वो ATG के लिए एलिजिबल है, वो ट्रस्ट, वो इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन सेक्शन ATG। तो ये अगेन टू डिस्करेज टू मेक दैट कैश ट्रांजेक्शन। इसी तरह से अगर कोई 80JJA में भी यही प्रावधान आया है, 1 जून 2020 से इस लिमिट को 2,000 रुपए किया गया रिसेंटली। अगर हमने कोई डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के रेफरेंस में, तो वहां भी यही प्रावधान है, 2,000 के सीलिंग के साथ में आ गया। एक और प्रावधान है ATGGB, ATGGC, यानी पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रीब्यूशन देती हैं, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज, जिसको ATGGB में कवर किया है, और ATGGC में किया है अदर देन कंपनीज लाइक एनीवन, इंडिविजुअल, HUF, फर्म एटसेट्रा। अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट देती है तो वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको रिबेट नहीं मिलेगी, करने में मनाही नहीं है, बस उनको सेक्शन ATG में रिबेट नहीं है, जो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए, जो इनकम में रिड्यूस डिडक्शन चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से डिस्करेज किया है इसको। इसी तरह उन्होंने रेस्ट्रिक्शन किया है पॉलिटिकल पार्टीज पे भी, सेक्शन 13A, वहां कहा है उन्होंने एक सर्टेन सिचुएशन बताई है कि ये इनकम उसकी चैरिटेबल पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम एग्जम्प्टेड होती है, लेकिन उसमें 3-4 तरह के केसेस बताए हैं उन्होंने, सिचुएशन बताई है कि ये इनकम जो है वो अगर आई है या वो रिसीट हुई है उनको, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, वो एग्जम्प्टेड नहीं होगी। तो 1/4/2017 से उन्होंने इसमें कहा है कि अगर 2,000 से ज्यादा का अगर कोई पेमेंट डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के आया है, तो वो भी उसकी इनकम में माना जाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पे एप्लीकेबल है। एक छोटा सा प्रावधान बीच में कंपनीज एक्ट का ले रहा हूं मैं, मुझे मिल गया था तो मैंने कोशिश करी उसको भी यहाँ लेने की। कोई भी कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट में कैश में नहीं ले सकती है, सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं ले सकती है, और ये प्रावधान सेक्शन 42(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रेस्क्राइब्ड है एंड विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2014। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है, हमारे क्लाइंट्स को बताना है, बहुत जरूरी है। कई बार इसकी जरूरत हमको बैकडेट से इफेक्ट लेने की पड़ जाती थी तो हम लेते थे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने हमको रेस्ट्रिक्ट किया है, रुका है। अब जो मैं कई बार आपके सामने बात करता, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या क्या हो सकते हैं, उन मोड्स की बात ये यहाँ पे की गई है, ये बताया गया है। ये पहले से भी था, इसमें से कुछ तो पॉइंट, लेकिन अब इसको एनलार्ज कर दिया गया, उसमें कुछ एडिशनल डाल गया, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तीनों प्रावधान पहले भी थे अलग। ये किन किन सेक्शंस में है, जनरली 269SS, 269T, 269ST, 40A3, 3A, 43(1) प्रोविजन जो 44AD(1), जिन प्रोविजन की हमने बात करी, या सेक्शन 13 या 11 उसमें प्रावधान पे है। क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS और भीम पे, आधार पे, जिसको, ये सारे वेरियस मोड्स बताए गए हैं जो कि एलिजिबल है, जिसको कि हम अदर देन कैश, अदर देन बेयर चेक, अदर देन क्रॉस चेक कह सकते हैं, ये सब एलिजिबल हम इन सबके लिए ट्रांजेक्शन करने के। अब दोस्तों हम कुछ प्रावधान जो डायरेक्टली हमको
दूसरे तरीके से इफेक्ट करते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए या हमारे क्लाइंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहला प्रावधान की हम बात करें, एक सेक्शन 285 बी ए दिया है, जिसको हम अगर रूल 114 ई के साथ पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने सर्टेन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएफटी की एक रिटर्न ट्रांजेक्शन जाया करता था। फॉर्म 61 ए में ये इंफॉर्मेशन जाती है और ईयर एंड होने के बाद में 31 मई तक ये इंफॉर्मेशन देनी होती है और ये एप्लीकेबल है। मैं सीरियल नंबर 11, मतलब बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड है, उसमें अगेन मैंने वो ट्रांजेक्शन लेने की कोशिश की जो कैश से रिलेटेड है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है पूरा हम 114 ई रूल को पढ़ रहे हैं या आगे भी कोई आएगा तो उसको पूरा कंप्लीट रूल को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसमें जो कैश ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में जितना कनेक्शन ऐड किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई कैश रिसीव हुआ है, ये एप्लीकेबल पहले तो उन लोगों पे है जो 44 AB में ऑडिट कराते हैं उनके ऊपर। अगर उन्हें कोई सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए कोई कैश रिसीव हुआ है तो उस कैश के लिए उनको उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61 ए में सबमिट करनी होती है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी मेंशन की हुई है 271 एफ ए के अंदर, ये जरूर ध्यान रखने की बात है। अब इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, एक तरफ तो ये प्रावधान एप्लीकेबल हुआ है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के ऊपर जो कि 44 AB में ऑडिट कराते हैं। एट द सेम टाइम हम हमारे क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि देखिए अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप जिससे ट्रांजेक्शन करेंगे उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन वहां सबमिट करनी पड़ेगी। एक तरह से वो ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पर चला गया और उसको वो सब्सिक्वेंटली कैश ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है या आपकी रिटर्न से मैच करने की कोशिश कर सकता है। और रिटर्न से मैच नहीं होने की केस में हो सकता है वहां से कोई डिपार्टमेंट नोटिस आ जाए, चाहे 131(6) में आ जाए या किसी और सेक्शन के अंदर आ जाए। तो ये ध्यान देने की बात है। इसका सीरियल नंबर 11 इसी के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं अपन इसी के अंदर। ये एप्लीकेबल बेसिकली बैंक या कोऑपरेटिव बैंक एटसेट्रा पे एप्लीकेबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया है, हम इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, एक तो किसको रिपोर्टिंग करनी है, एट द सेम टाइम किन लोगों को इस तरह के ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें सीरियल नंबर 1A के अंदर ये कहा गया है, इसको हम देखेंगे तो वहां पे भी मिलेगा ये वापस, ये भी अगेन रूल 114E के अंदर ही दिया है। यदि हम एक साल में किसी बैंक से कैश में बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं या पे ऑर्डर बनवाते हैं या बैंकर चेक बनवाते हैं और पूरे साल में उसका अमाउंट 10 लाख या इससे ज्यादा हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी रिपोर्ट उस बैंक को सबमिट करनी पड़ती है। लाइकवाइज हम इसको रेस्ट्रिक्ट अगेन कह रहा हूं कि ये मत समझिए कि हमारा बैंक क्लाइंट नहीं है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट इस परिप्रेक्ष्य में है छोटे प्लेसेस में, स्पेशली सपोज पोस्ट ऑफिस वगैरह में ऐसा कई बार हो जाता है कि वहां पे इस तरह के ट्रांजेक्शन कर दिए जाते हैं। इसी तरह करंट अकाउंट के रेफरेंस में बड़ा ध्यान देने का नेक्स्ट प्रोविजन, जो करंट अकाउंट में अगर हम कोई कैश डिपॉजिट कराते हैं फ्रीक्वेंटली या विड्रॉ करते हैं तो दोनों का एग्रीगेट अमाउंट अगर 50 लाख या इससे ज्यादा हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी जरूरत होती है। तो हम गाइड करें हमारे क्लाइंटों को कि कोशिश करें कि भैया कैश ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक मैक्सिमम पॉसिबल अवॉइड करें। स्पेशली ध्यान रखें सीलिंग पे अगर किसी के होने भी जरूरी है या होते भी हैं तो 50 लाख को क्रॉस नहीं करें ताकि पेस आगे इंफॉर्मेशन नहीं जाए। इसी तरह अगर हम बात करें एक और ट्रांजेक्शन जो कि एप्लीकेबल है बैंक पे भी है, कोऑपरेटिव पे भी है, पोस्ट ऑफिस पे भी है, ये बात करता है सेविंग बैंक अकाउंट के रेफरेंस में, नॉट करंट अकाउंट। पहले हमने बात करी थी करंट अकाउंट के रेफरेंस में, अब ये बात करता है सेविंग अकाउंट के रेफरेंस में। ये कहता है कि अगर, और बात भी करता है सिर्फ डिपॉजिट की, वहां बात करता था डिपॉजिट एज वेल एज विड्रॉल, यहाँ बात कर रहा है सिर्फ डिपॉजिट की। यानी सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल में अगर हम 10 लाख या इससे ज्यादा कैश जमा कराते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस को सबमिट करनी जरूरी होती है। ऑफ कोर्स द डेट वही है 31 में, फॉर्म भी वही है 61A जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पेनल्टी प्रावधान भी वही है, ये ध्यान देने की बात है। एक और सेक्शन है जो कैश ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में 114E में रेफर किया गया है, उस ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में भी ये भी एप्लीकेबल किन पे, बैंकिंग पे है, कोऑपरेटिव बैंक पे या कोई कंपनी जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है उनके रेफरेंस में है। उसमें ये कहा गया है कि यदि हम एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और उनका पेमेंट हम जो कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या इससे ज्यादा कैश में करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या ऐसी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
तो ध्यान रखने की बात यह है हमें कि हमें क्लाइंट को कहना है कि भाई कैश ट्रांजेक्शन अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो और आप उसका पेमेंट कैश में कर रहे हो और बाई भी वो ये सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन इन द आईज ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम उसको केयरफुल करें, उसको सचेत करें, उसको समझाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 114 बी। ये विद रेस्पेक्ट टू कोटिंग ऑफ द पैन नंबर है। अगर हम पैन नंबर नहीं देते हैं तो क्या होता है कि ये ट्रांजेक्शन इस सर्टेन लिमिट से ऊपर होने पे हमें एक फॉर्म 60 फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 60 ये कहता है कि मेरा पैन नंबर नहीं है और मेरी इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं है। इस तरह का एक डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है, और वो डिक्लेरेशन लेने वाला जिसके साथ ये ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन की रेफरेंस में अपन अभी बात करेंगे किसके साथ में है ये ट्रांजेक्शन, उनके ऊपर के साथ ये ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन फॉर्म 60 लेते ही उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर्म 61 में सबमिट करना होता है। मतलब फॉर्म 60 में इंफॉर्मेशन मिलेगी, फॉर्म 61 में सबमिट करना पड़ता है। और ये सबमिट कब करना पड़ता है, यानी फर्स्ट हाफ में अगर कोई आए हैं तो उसके लिए डेट है 31 अक्टूबर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में किसी कंसर्न ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में अगर इस तरह का कुछ आया है तो वहां पे भी ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से अगर कोई ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आया है तो उसके रेफरेंस में भी ये ट्रांजेक्शन देखने की बात है, यानी उसके लिए 30 अप्रैल तक सबमिट करना पड़ता है। एक 30 डेज का टाइम दिया है, नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट का टाइम दिया उन्होंने इसको रिपोर्ट करने के लिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं फॉलोइंग 2 तरह के ट्रांजेक्शन जिसकी हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होता है रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग एंटिटी हो गई जिनका की 44 AB में ऑडिट होती है, यानी एक तरह से तो रिपोर्टिंग किनको करनी है, जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन है और जिनकी 44 AB में ऑडिट होती है। लेकिन इनडायरेक्टली एप्लीकेबल सभी पे हो गया। किस तरह के ट्रांजेक्शन पे, यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट में एट एनी वन टाइम अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है और उस ट्रांजेक्शन में कैश पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज है उस ट्रांजेक्शन में, तो उस ट्रांजेक्शन में पैन नंबर हमें देना चाहिए। पैन नंबर नहीं देते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सबमिट होती है। लाइकवाइज अगर हमने कोई फॉरेन ट्रेवल के रेफरेंस में कोई पेमेंट किया है, चाहे वो फेयर का किया है या ट्रेवल एजेंट को और कोई पेमेंट किया वहां का होटल वगैरह का, और ये वन टाइम पेमेंट किया है, मतलब एक बार में पेमेंट किया हमने और वो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट है कैश में किया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाती है। ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से अगर हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में तो वो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर अगर हम पैन नंबर नहीं देते हैं तो वो भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करनी पड़ती है। इसी तरह हम कोई बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक भी कैश में बनाते हैं एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन ए डे, यानी एग्रीगेट तो 10 लाख में वहां कवर हो रही है, इंडिविजुअली 50,000 से ज्यादा का अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन है तो वो यहाँ कवर हो रहा है रूल 144B में। तो वहां पे इस तरह से दिखाया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कोशिश की आपके सामने वेरियस प्रोविजंस विच आर मेंशन एट द वेरियस प्लेसेस इन द इनकम टैक्स एक्ट to make at a one place, or with this my presentation is complete, and now I request to moderator to please carry on, or if any there are some queries are there we can go ahead with this query. Moderator please. Thank you, sir. It was really a great session you have delivered. So, yeah, we have queries from Abhinav Gupta. The first query we are going to cover is whether purchase of agricultural land. Just a minute. Can you share it on the screen also? Yeah, I can share. That will be more better along with you.
I'm just copying the queries till the time you guys can raise, if anyone else have some queries, can raise your hands and directly can ask to the sir your queries. Till the time I'll summarize or I'll collect the queries which we have till now. Yes, Bhumika, ma'am has some query. Yes, ma'am. Ask. Sir, say suppose I'm a wholesaler जी and I'm selling in cash. जी So my bill should not be exceeding 2 lakh rupees. Okay. yes 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 So is it okay that I am issuing every invoice for 1,50,000 and I am receiving in cash only from my customer? yes, it is better, it is better. So means every day I have to make a receipt of 10,000. I cannot receive more than rupees 10,000 from a person in a day See because what he's happens again. एज ए Yeah. रिसिपिएंट आपके लिए 2 लाख की लिमिट है, 269 एसटी में कवर होंगे आप, है ना? और जो पेमेंट कर रहा है, अगर वो बिजनेस के लिए ले रहा है तो 10,000 से ज्यादा आपको कैश में पेमेंट नहीं कर पाएगा कैश. Yeah, because he's also buying for his business. I Then am he a cannot wholesaler, pay. so he is a retailer. He is a retailer, then there is no option for you. If you want to trade with him, तो वो आपको कैश में ही अगर पेमेंट करेगा तो 10,000 से ज्यादा Yeah. आपको वन डे में पेमेंट नहीं कर पाएगा, अदरवाइज उसका वायलेशन हो जाएगा सामने वाले का. Yeah, so means I have to receive 10 days, 10,000 every day. I have to make a receipt of 10,000, 10,000 for those bills. Yeah, but try to execute to your customer also. It is in the interest of him also, in the Yeah, interest of his. they are very small retailers, means we cannot expect from that. देखिए भूमिका जी, Do आज their के टाइम trading. में आफ्टर दिस कोविड-19 most of us, very small amount of people are also using Paytm or various others mobile app. Yeah, right. Yeah, I agree with you, sir. but anyway you can go with this way, no problem. Yeah, okay. Means there is no issue. In that case, we are safe, both parties. Yeah, but point is 2 लाख से ज्यादा का आपका एक इनवॉइस मत बनाइएगा. Yeah. Okay, sir. Thank you. So sir, I'm sharing my screen to you. Sir, are you able to see the screen? Yeah, yes ma'am. So sir, we are having question for whether purchase of agricultural land in cash, which is not capital asset under section 214, section 56. मैम ऐसा कोई क्लियर उन्होंने इसमें एग्रीकल्चर एसेट कोई अदर देन कैपिटल एसेट को कहीं भी डिबार नहीं किया है कैश में परचेज करने के लिए. यानी हम अगर हमारा सेक्शन देखें जो जहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने के रेफरेंस में, तो वहाँ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कहीं भी उसको ऐसा नहीं कहा कि इससे डिबार किया गया है. यानी कैश में पेमेंट हम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. Okay, sir. So the next question we have whether the cash payment to JVNL draft section 48(3). Yes, definitely it attract. You cannot make the payment to JVBNL. It is a government company. It is not a government. यानी गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को पे नहीं कर सकते. Okay, sir. Thank you. The next question we are having is whether capital introduced by partner in cash or withdrawal by partner in cash is also covered. And further question we have in this regard is if a partner daily deposits cash of ₹1 lakh in form of capital, is it allowed? देखिए पार्टनर फ्रॉम एनी अदर पर्सन है वहां पे, तो हम ये देखेंगे अगर पार्टनर खुद का फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या विड्रॉ कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Okay, sir. Thank you. The next question we have whether payment to creditors in cash below 20,000 each day is default under section 269 SC. Whether payment to creditor in cash below 20,000 rupees, 10,000
10,000 की लिमिट है मैम क्रेडिटर को पेमेंट के लिए. इट इज फॉर बिजनेस और फॉर व्हाट? This is the question. Abhinav Gupta, if he Whether, just a minute again, whether payment to creditor in cash below 20,000 rupees every day is default of 269 ST. Yeah, he asked this question. देखिए 269 ST सभी पे एप्लीकेबल हो रहा है ये, है ना प्रावधान, और वहां 2 लाख की सीलिंग दी गई है एक्चुअली उसके अंदर. तो ये पेमेंट रिसीवर के केस में है 269 ST, ना कि पेमेंट के केस में. तो इन द हैंड ऑफ रिसीवर के एंगल से देखा जाएगा ये वाला सेक्शन. ओके. Okay. So the next question we have, whether marriage function payment made by 3 relatives separately below 2 lakh is allowed. यस, इसको इस तरह से ले सकते हैं अपन, एक एग्जांपल के रूप में अपन समझ सकते हैं इसको. कोई एक मैरिज फंक्शन पर्टिकुलर इवेंट कुक वाले को दिया हमने, और उस इवेंट मैनेजर ने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. से फॉर एग्जांपल रिंग सेरेमनी भी है, रिसेप्शन भी है, और दोनों फंक्शन की फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 2,20,000 1,80,000 एक है, 1,90,000 एक है, 3,70,000 का टोटल बिल है उसका फॉर एग्जांपल. तो मिस्टर एक्स की ने मैरिज के सन की मैरिज हुई, तो मिस्टर एक्स पेमेंट कर दे 1,80,000 का, और मिसेज एक्स भी पेमेंट कर दे रिमेनिंग 1,90,000 का, तो वो अलाउड है. क्योंकि रिसिपिएंट 2 अलग अलग लोग हो गए. उसने जो सर्विस प्रोवाइड की है, जो सर्विस दी है, वो 2 अलग अलग लोगों को दी है. फ्रॉम ए पर्सन, अगेन ए सिंगल इवेंट लिखा है, तो पर्सन जब 2 हो गए वहां पे, तो अलग अलग हो सकता है. Am I right? Okay. Yeah, got your point. The next question we are having is whether unsecured loan is squared off by our loan and advanced by journal entries will attract section 269 assets. Yes, definitely. Whether unsecured loan is squared off by over loan in advance by journal entry, no, it can't be. It is 269T. It is a repayment of loan. It is a repayment of loan. So while squaring it up, we attract the sections. Yeah, definitely. 269T is applicable in this case. So the next question we are having is whether in introduction, I think we have covered this earlier. Beg your pardon, please come again. Yeah, whether the partner introducing cash as capital for more than 2 lakh is allowed in the section 269. Yes, again same query, which is repeated query. Yeah. So the next question we are taking is if donation received by a charitable trust for more than 2,000, what is the consequences on the trust? No consequence for the receiving trust. The consequences are for the person who is paying and want to take the rebate under section 80Z only. If suppose the payer do not want to take the rebate under section 80Z, there is no consequence to anyone. Rajiv Irani sir has some questions. Rajiv sir, please. हाँ नमस्कार सर. अरे राजीव जी, क्या हाल है? बस बढ़िया सर, बढ़िया. From my hometown. सर नॉर्मली हम देखते हैं कैश पेमेंट जो 10,000 की लिमिट होने के बाद, पहले भी 20,000 की थी, तब भी लोग स्प्लिट ऑफ ट्रांजैक्शन करते थे, अभी भी कर रहे हैं. स्पेशली मेरा जो क्वेश्चन है वो सैलरी से रिलेटेड है. अगर किसी पर्सन की सैलरी 50,000 या अबव है और उसका जो पेमेंट है, जो लोग हैं स्प्लिट करके उसको 8,000, 7,000, 5,000 करके महीने में 5-5, 7-7 बार दिखा रहे हैं, तो ये ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके बारे में क्या एविडेंस अपने रिकॉर्ड में लेना चाहिए या क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सजेस्ट, जैसा हम सब करते भी होंगे, कि भाई इस तरह का काम नहीं करें, नंबर 1 है ना, फोरमोस्ट तो ये है. सेकंड, अगर उसको करना भी है बाय द वे, क्योंकि हमको क्लाइंट को सजेशन ही देना है ना, इंप्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है, करेक्ट. तो उसको कहें कि अगर सपोज उसके यहाँ 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 को इसी पैटर्न में पेमेंट करें. फॉर एग्जाम्पल हर 10 दिन बाद पेमेंट करता है वो, इस तरह का कोई पैटर्न डेवलप करें, इस तरह की कंसिस्टेंसी डेवलप कर लें आप, इस तरह से गाइड करें. ऐसा नहीं हो कि 4 एम्प्लॉय को तो दे रहा है इस तरह से, और बाय द वे किसी की 10,000 से कम है उसको 1 गो में दे रहा है एक बार ही. और इसमें सर एक्चुअली अपने साथ जो प्रॉब्लम है वो सबके साथ एक ही है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है ऑडिट के टाइम एक साथ पिछले साल के अकाउंट्स लेके आता है, तो उसमें ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं. जो पुराने ऑडिट के टाइम पे अपने पास डेटा आता है वो हमें किसी भी तरह जो भी है अपने को रिपोर्ट करना होता है. हाँ. इशू वहां आता है कि कुछ जगह वो पेमेंट चेक से दे रहे हैं और कुछ जो एडजस्टमेंट वाले पेमेंट है वो कैश कर रहे हैं.
ये इशू रहता है बस। देखिए ये ऑडिटर की लिमिटेशन रहेगी हमेशा, क्योंकि वो फिजिकली ऑन द डे ऑफ द इवेंट नहीं था, मतलब जिस दिन पेमेंट किया उस दिन वो सामने नहीं होता है कि वाकई 10,000 से ज्यादा किया या नहीं था। तो एज पर द रिकॉर्ड जो हमारे पास सामने होगा, एज पर द एविडेंसेस जो होंगे, कैश पेमेंट के वाउचर होंगे, किस तरह के वाउचर बने हुए हैं, क्या उनकी कंसिस्टेंसी है, क्या रिपोर्टिंग पैटर्न है, क्या हैंड राइटिंग है, क्या इनका फ्लो है ना, इन सब चीजों को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि वन गो में बने हुए हैं ये सब चीजें, एक साथ पेमेंट हुआ लेकिन उसको ब्रेक कर दिया उन्होंने, डेट अलग अलग मेंशन कर दी है, तो आप उनको गाइड करें कि ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। सर और एक चीज को ध्यान दें राजीव जी, आप बेसिकली उस टाइम पे, ठीक है वो इस बार तो आपके पास में लास्ट में आया है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आप जरूर एजुकेट करें, सो दैट सिमिलर प्रॉब्लम कैन नॉट अराइज अगेन एंड अगेन। सर इन केस ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो कई बार ऐसा होता है कि का कोई डिस्प्यूट रीजन से पेमेंट चेक से नहीं हो पाता है, और वो पेमेंट मल्टीपल बिल्स का पेमेंट जो है वो टोटल 2 लाख से ऊपर का हो जाता है। सिंगल बिल नहीं है बट मल्टीपल बिल है, 50-50 हजार के 8 बिल है जैसे। अब वो पार्टियां उनको 10-10 हजार के 40 पेमेंट दिखाती हैं, ऐसे हम सब देखते हैं ये चीजें। तो उसमें एविडेंस अपने पास किस तरीके का हम रिकॉर्ड पे अपने लें? उससे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मंगवा लें आप, तो सामने वाले से अकाउंट कंफर्मेशन का ही ऑप्शन है और कोई तरीका नहीं। हाँ, या तो रिसीट मिल जाए हमको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के पेमेंट की, वो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, वो इजी नहीं है, तो लेकिन अकाउंट कंफर्मेशन मंगा लें अकाउंट, तो ठीक है, उससे आप सेव हो जाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेवल पे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। Sir, we have one more question. Whether the payment made to contractor for construction of personal house will attract section 48B or section 269 ST? No, not applicable. पर्सनल हाउस बना रहे हैं मैम, ये बिजनेस प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर एज ए एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं तो ही एप्लीकेबल है, वहां पे नहीं है। आपका 10,000 की लिमिट वाला ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां एक टीडीएस का प्रावधान आ गया अभी रिसेंटली, वो कैश ट्रांजेक्शन से रिलेवेंट नहीं है। 50 लाख या इससे ज्यादा का हमको इस तरह का काम करते हैं कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो वहां पे वो एक प्रोविजन आ गया है ना, रिसेंटली एक टीडीएस प्रोविजन आ गया है। कोई मकान बना रहे हैं और 50 लाख से ज्यादा का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने, तो वहां पे आपको टीडीएस काटना होता है ऐसे लोगों का। If I'm asking this question in the perspective of contractor, then what will be the consequences in this regard? कॉन्ट्रैक्टर पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे ना मैम, वो तो रिसीवर हैं। Okay, so either 269 ST or yes 269 ST में आ सकता है। 2 लाख से ज्यादा पेमेंट हो गया तो ये ध्यान रखिएगा, इफ ही इज मेकिंग द पेमेंट इन द कैश और सिंगल ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो 269 ST में वो कवर हो जाएगा आपका, है ना। सर इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, जो सपोज आपने भी 50 लाख की लिमिट कराई कि एक हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और उसमें 50 लाख की लिमिट होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 50,000 ये ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या जो पेमेंट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सपोज मेरा घर मेरे दादी के नाम है बट कंस्ट्रक्शन का पैसा मैं दे रहा हूँ, तो कहीं अपन ये करेंगे 50 लाख पिताजी दे रहे हैं, 50 लाख मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से किस तरीके से देखेंगे इसको, कैलकुलेट कैसे करेंगे 50 लाख को? पेयर के हिसाब से देखना चाहिए इसको, मतलब इसमें प्रॉपर्टी ओनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? ना, अगर एक्चुअल में दो ओनर है तो कैसे होगा? हाँ, मैं वही चीज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो वो तो ओनर ही नहीं दे, सपोज फादर भी दे रहे हैं तो सब वाइफ भी दे रही है, माँ भी दे रही है, कोर्ट कैसे भी किसी तरीके से एचयूएस से भी 10 लाख रुपए कर दिए सपोज। भाई तो आपका एग्रीमेंट चेक करिए कुलदीप जी, पहले एग्रीमेंट बनाइए आप, है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो एग्रीमेंट बनाया उसमें वैल्यू को असेस कीजिए, उसमें कौन कौन पार्टी बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी पे घर के 4 लोग पेमेंट कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको अदरवाइज भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम से बिगिन होगी, है ना, ध्यान रखने की बात है। ओके, so we have spare time. Please, I really want to ask you, please raise your questions and ask few more queries to the sir, because he has really a vast experience and he will definitely answer you well. So I really want to request you all again. We have around 40 minutes spare. देयर इज वन क्वेरी सर, जो ये कैश की जो लिमिट है क्या वो स्टाफ एडवांसेस पे भी काउंट होगी? क्योंकि अपने सपोज अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम उसको लाख रुपए 3 जगह डिपार्टमेंट अपने, और या कॉन्ट्रेक्चुअल साइट है कहीं पे कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं या आउट स्टेशन पे होते हैं, तो हम उनको लाख रुपए 50,000 रुपए अपन उनको एडवांस देके करते हैं, तो क्या कैश पेमेंट का क्या स्टाफ को एडवांस अपन करते हैं क्या उसमें भी काउंट होगा? नहीं, ये कि 6DD में एक प्रोविजन था, आपने देखा होगा, तो एजेंट को पेमेंट जो करते हैं हम,
तो वो आपका एजेंट के रूप में हो गया, वो आपके एजेंट के रूप में हो गया। आपका मार्केटिंग की टीम सपोज कहीं गई है और वो जाके, लेकिन उनको वहां पे एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जब वो करेंगे तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ये ध्यान देने की बात है। सपोज आपकी मार्केटिंग टीम कहीं गई और वहां पे जाके कोई होटल बुक कराया उसने अपने लिए और वहां का पेमेंट 10,000 से ज्यादा हो गया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा वहां पे, ध्यान रखिएगा। आप एज अपने मार्केटिंग टीम को 50,000 एडवांस दे रहे हैं, वो चलेगा कैश में दिया हुआ, ठीक है ना। बाकी आज के टाइम में ये नहीं होता कुलदीप जी। आज के टाइम में क्या होता है, बैंक के थ्रू जाता है, स्टाफ सबका खाता होता है, सबके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, नेट बैंकिंग होती है। बहुत हाइपोथेटिकल बातें मतलब हो गई, क्योंकि ये जो अपन बात कर रहे हैं ये सब चीजें क्यों आती है, जब जुलाई अगस्त सितंबर में जब ऑडिट के लिए अपने पास आता है तो हम कहीं तो कुछ करता ही नहीं है। वो तो हमें जब, जैसे अभी राजीव सर बोल रहे थे, जिस तरह हमारे पास तब आता है जब ऑडिट करनी होती है, तो हम इसे एज ए टूल की तरह अपन यूज करने की कोशिश करते हैं कि अपने भी सही नहीं हो, क्योंकि क्लाइंट के पास तो कुछ ऑप्शन बचता नहीं कुछ करने को। तो कहीं ना कहीं अपनी वो उस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं या उसको गाइड करते हैं, और तो उस जगह सेफ्टी टूल की तरह अपन यूज कर लेते हैं कि जब अपन उसको स्टाफ एडवांसेस की तरह ट्रीट कर दो, अपन ने किसी स्टाफ को सैलरी अपन ने बांट दी, जैसे सर बता रहे थे जो 5-5 हजार रुपए 10-10 रुपए हर वीक में बांट दिया उनको, 4 बार वीक में, महीने में 4 बार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एज ए स्टाफ एडवांस की तरह। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि क्लाइंट ऐसा करता है, बट कई बार अपनी ही गलत प्रैक्टिस है, अपन क्लाइंट को अपन मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरीके से बच सकता है, वो इस तरीके से कर सकता है, तो वो अपन यूज करते हैं बचाने के लिए, क्योंकि हमें भी वो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास कि अपने को ऑडिट भी करनी है, विद इन गिवन टाइम में भी करनी है, क्लाइंट को भी बचा के करना है। और जो सर आप जो बात कर रहे थे कि अपन क्लाइंट को एजुकेट करेंगे नए साल से, तो सर क्लाइंट को पूरा साल भर मिलता है कि या तो मैं सीए चेंज कर लूँ या मैं वो अपनी खुद की कंडीशन पे कराने पे तैयार हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ठीक है बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ा एजुकेटेड भी होते हैं, उनकी प्रॉपर टीम भी होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच भी होती है, उनकी समझने की कोशिश करते हैं, रूल्स के फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। बट जो अनएजुकेटेड या लोअर एजुकेटेड या जो अपन बात करते हैं ना, जो सिर्फ अपने को धंधा करना आता है, बाकी नियम सीए साहब आप जानो, वकील साहब आप जानो, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं इतना सा जरूर कहूंगा आपको कि अब इस कोविड-19 के तहत हम इस जूम इस तरह की वर्चुअल मीटिंग्स के बहुत आदी हो गए हैं और यूज करने लग गए हैं। तो एक सजेशन सभी को मैं जरूर देना चाहूंगा कि इस तरह के जो जनरल प्रोविजंस जो एप्लीकेबल होते हैं, नॉट ओनली कैश बट अदरवाइज आल्सो, उसके एक सिनॉप्सिस या लिस्ट बनाए अपने पास में और एक मीटिंग अपने क्लाइंट्स की जूम पे जरूर लिया करें। साल में 1 बार 2 बार टीडीएस प्रोविजंस के बारे में, इसके बारे में, नए अमेंडमेंट्स के बारे में आप अगर रेगुलर ये लेंगे तो आपको ऑडिट करने के दौरान बाद में इस तरह की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली मिनिमाइज होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सारी ठीक हो जाएगी, बट ग्रेजुअली बहुत कम होती जाएगी और आप देखना इसका इफेक्ट आएगा। आज हम 5 साल पहले की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम डिजिटल मोड पे ट्रांजैक्शन इतने नहीं होते थे, बट आज की अगर एज ऑफ नाउ की बात करें तो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। मतलब कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो वाली बात है। So sir, we have one more question. Should the said purchase in cash, the application is not allowed in first year, whether it will allowed in the subsequent year? I do not understand, ma'am. Please come again. Hello, sir. अशोक सर। यस सर, यस सर। अशोक सर, प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स्ड एसेट किसी ने कैश में परचेज कर ली। जस्ट अ मिनट, बंद कर। सर फिक्स्ड एसेट्स को कैश में परचेज कर लिया। अच्छा। अब उसका एक तो ब्लॉक बनाने में प्रॉब्लम आती है कि उसको डेप्रिसिएशन कैसे डिसअलाउ कराएं और दूसरा ये होता है कि सर किसी और सीए के से पास अगर आपके पास फाइल आ गई तो वो डब्ल्यूडी की ओपनिंग दिख रही है उसकी, तो उसमें वो डिसअलाउ सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा सर? सर अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो डिसअलाउ होना ही है, ये आप भी कर दोगे, वो तो ठीक बात है ना। अब उसके लिए क्या है कि आपको अकाउंटिंग इस तरह से करनी चाहिए, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए प्रावधान प्रोविजन आना एक अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है ना, ये वाली बात आ गई। तो फर्स्ट ईयर में आपने कर दिया, सेकंड ईयर जहाँ पे आ गया, जो एग्जांपल ही हमने लिया था उसी एग्जांपल के रेफरेंस में अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सिर्फ 1,80,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसके बाद वाले अमाउंट में मिलना चाहिए था। यानी अगर 2 लाख की एसेट के केस में था, 20,000 कैश में पेमेंट था, तो 1,80,000 के हिसाब से मिलना चाहिए था, 20,000 पे भूल जाना चाहिए था। तो उसका तरीका जो मैं सोचता हूँ, और सब भी अपना अपना इंडिविजुअली तरीका कुछ भी लगा सकते हैं, हम एसेट को 2 कैटेगराइज कर लें, डेप्रिशिएबल एसेट और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उस कैटेगरी में रिमेनिंग अमाउंट को फॉल कर दें, तो हमको नेक्स्ट ईयर और कंटिन्यूअसली ध्यान रह जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर मतलब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना सर? यस डेफिनेटली, वो तो फर्स्ट ईयर जब उस ब्लॉक में फॉल नहीं हुआ तो कहां से मिलेगा? ठीक है ना। थैंक यू। अशोक सर। यस सर। हेलो। यस सर, यस सर। हेलो
सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। मेरे पास एक अभी फाइल रेफर होके आई है किसी सीए से, उसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख रुपए का आ रहा है। जब हमने उससे कैश का सोर्स पूछा, क्योंकि हमने माना 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि हम मेरी वाइफ ने एक पर्सनल लोन लिया है उसको चलाने के लिए, बुटीक चलाने के लिए, और वो उसने अपने कैश में से विड्रॉल करके बोला ये कंट्रीब्यूशन मैं उसमें से लेके आया हूँ। अब वो जो बुटीक वाला है उसका ना तो हम ऑडिट कर रहे हैं ना हमने उसका अकाउंट देखे हैं, तो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और हमारी बीइंग सी कहाँ तक हमारी लायबिलिटी है रिपोर्टिंग की, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन वो बता रहा है 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, वो ये कह रहा है ये तो पर्सनल लोन जो मेरी वाइफ ने लिया था वो मैंने इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाल दिया। अब उसका जो बुटीक चल रहा है वो कैसे चल रहा है ये हमें आइडिया। आप रिपोर्टिंग कहाँ करना चाहेंगे इसकी? क्या कर रहे हैं आप उनका प्रोफेशनल वर्क जहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है? सर हम लोग उनको टैक्स ऑडिट करेंगे, उसका टैक्स ऑडिट करने के बाद वो माइंस चलाते हैं, वो माइंस चलाते हैं। समझ गया मैं। तो देखिए उस सोर्स को हमको जाके चेक नहीं करना होता है। आप इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर उसका बैंक से पेमेंट आ जाता, बाय द वे एग्जांपल, ये 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बैंक से पेमेंट आ जाता थ्रू बैंक, तो भी हम सोर्स पे जाके नहीं देखते ना, हम सब्सिक्वेंट सोर्स नहीं देख सकते सर। हम उसका सब्सिक्वेंट सोर्स हमें एज ए ऑडिटर नहीं देखना है नॉर्मल रूटीन में, टिल अनलेस बहुत सीरियस इशू नहीं है। और स्पेशली टैक्स ऑडिट का जो स्कोप है 44 AB का जो स्कोप है उसके अंदर कहीं भी नहीं है कि आपको सब्सिक्वेंट जाकर के उसका सोर्स चेक करना है। तो वो जो कह रहा है कि वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, तो उसे हम फ्रॉम किससे माने, उसका ऑन कंट्रीब्यूशन माने या वाइफ के नाम पे दिखाएं कि वो भाई हमारे पास कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं कि क्या माने उसको कि रिपोर्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसका ट्रीटमेंट क्या ले और अपने सेफर साइड के लिए सब्सिक्वेंटली कोई हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उससे क्या एंगेजमेंट लेटर के साथ क्या कंफर्मेशन ले। आप उससे MRL में लिखवा लें ये वाली बात। अच्छा है ना, MRL नहीं उसमें लिखवा लें, उसमें मेंशन करवा लें। लेकिन वो वाइफ से कैश वैसे नहीं ले सकता, बट अपने फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूँ समझिए एज ऑडिटर आप जिसकी ऑडिट करेंगे ना वहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ मैं वही पूछना चाहता हूँ सर। बेसिकली तो ये है कि उसको आप कहें कि अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए वो, जी है ना, पर्सनल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए वो पार्टनर जो भी हैं या तो ऑपरेटर जो भी हैं, और उसके थ्रू वहां से निकल के आ जाएगा फिगर कैसे आ रहा है। हेलो हेलो अशोक सर। यस गुड आफ्टरनून सर। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जब हमारे पास कैपिटल अगर शॉर्ट पड़ती है या कैश शॉर्ट पड़ता है किसी भी प्रोपराइटर के पास ड्यूरिंग ऑडिट, तो जनरली एक सिस्टम होता है कि वो लोग कैश इंट्रोड्यूस कर देते हैं कैपिटल से। हाँ। तो उसका हमारी ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए? बिकॉज उन्होंने कोई कैश क्रिएट तो किया नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स बहुत लिमिटेड होती है सबकी बुक्स में, और उनके पास सडनली कैश आ जाता है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या कैश बहुत एक्सेसिव होता है तो वो विड्रॉ दिखा देते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए हमारी ऑडिट में? कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है मैम, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेरी और है मेरी कि जो पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें अभी अपने को 20A फाइल करना होता है कमेंसमेंट के लिए, उसके अंदर में जो शेयर इंट्रोड्यूस होती है उसके लिए कुछ जगह पे ये प्रैक्टिस होती है कि वो लोग एक कैश के अंदर स्टेटमेंट बनाते हैं कि कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जो भी शेयर होल्डर्स है उन्होंने, और उसको अपलोड कर देते हैं एज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के लिए। तो बेसिकली कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे कोई इम्पैक्ट? भाई कंपनी कैश में कैपिटल नहीं ले सकती प्राइवेट प्लेसमेंट में। मतलब मेरे पास जैसे एक केस आया उसके अंदर में, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज फाइल करते हैं नॉर्मली ये सब, तो उन लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाया, उन्होंने उसमें कैश में रिसिप्ट दिखा दी है सबसे कि सबसे कैश में पैसा आया है, और ज्यादा बड़ा अमाउंट तो होता नहीं है, लाख रुपए की कैपिटल है तो किसी का 10,000 15,000 ऐसे करके कैश इंट्रोड्यूस दिखा देते हैं, कैश बुक का एक बना के साइन करके उसको अपलोड कर देते हैं, तो बेसिकली कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस दिखा देते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, स्पेशली जिसके टैक्स ऑडिट नहीं लग रही है, सिर्फ स्टैट ऑडिट लग रही है? समझ गया मैं आपकी बात में, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको अगेन अपन देख के वापस आप में से बात कर लीजिएगा, बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। So sir, we are having one more question in my personal chat. Sir, payment to government wine company like Rajasthan State Ganganagar Sugar Mill will be disallowed or not? Government to government? Yeah, government company. This is government company, na? Yeah, this is government company, the wine company, sir. And what it is doing? What transaction it is doing? And saying the sentence again. Cash payment to government wine company like Rajasthan State Ganganagar Mill will be disallowed or not? मैम क्वेरी समझ में नहीं आ रही है आपकी, देखिए।
I think they are asking like if we are making any payment to buying companies in cash, so will it attract any section under income tax act of disallowing the expenses? अगर 48(3) की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हम इन एवरी, है ना? जैसे JBVNL का एक क्वेरी आई थी आपके पास, करेक्ट? हाँ. Okay, so the next question, the same person has asked, we paid electricity bill or LIC payment of relative more than 10,000 via credit card, and then we received that amount in cash from that relative. Then will it attract any section under income tax act? आवाज आपकी थोड़ी सी इको हो रही है मैम, या तो थोड़ा Sorry for the inconvenience. I'm read the question again. हाँ. That if like I'm saying it in my words. If we are making payment on behalf of our relative. On behalf of? On behalf of our relative. Okay. To LIC via credit card. Okay. And we are receiving cash from relative, then what will be the implication on us? In which mode we are receiving the payment from our relative? Hello. Can I in which? How the payment is received from the relative? Cash, in cash. In cash we are receiving, and the agent is making the payment on behalf of the relative to the LIC. Is it like that? Yeah, same almost. Almost is it like that then? Then no issue, ma'am. Okay. And what is the amount? Is there any amount? More than 10,000. More than 10,000. No issue. No issue. Yes. No issue. The next question: cash payment made for agriculture plots say 50,000. What will be the consequences? मैम एग्रीकल्चर प्लॉट पे क्वेरी आ गई थी आपको, देखिए आप सबसे शायद शुरू में वही क्वेरी थी अपनी बिगनिंग पे. एग्रीकल्चर लैंड के बारे में ऐसा कोई क्लियर कट वो नहीं दिया है उन्होंने कि रिलीफ नहीं दिया है. I think we have covered all the queries as far we have received. So I really want to thank to everyone, to speaker sir and everyone who contributed to this session well. And now I want to say thank you to Kuldeep sir, Secretary of the branch, and I want to ask him to give some words to everyone. So Kuldeep sir, is now over to you. Thank you, ma'am. सबसे पहले मैं जयपुर ब्रांच की तरफ से सभी मेंबर से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा. जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि जैसे केस ट्रांजेक्शन के से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविजंस क्या है, सीए प्रैक्टिशनर्स को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ऑडिट के दौरान और ड्यूरिंग कंसल्टेंसी, तो इस तरीके के टॉपिक जैसे आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें टॉपिक पे अगर बात करें तो अपन सिर्फ कैपिटल गेन पे बात करें या और पर्टिकुलर अपन बात करते हैं एचयूएफ में एचयूएफ की बात करें पूरी डिटेल में. आप किसी भी लो प्रोविजन कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो भी प्रोविजन जिस पे भी अपन सीपी प्रोग्राम करते हैं, किसी भी मेंबर को अगर चाहिए कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे एक कोई सीपी होना चाहिए. जैसा एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट इनकम पे भी ट्रांजेक्शन अगर होते हैं, एग्रीकल्चर जो अपन, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वेयर हाउसिंग इनकम हो गई उससे रिलेटेड या कुछ भी इस तरीके से, तो सभी मेंबर से गुजारिश है कि आपको लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सीपी प्रोग्राम होने चाहिए, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जयपुर ब्रांच की वेबसाइट पे हमारी मेल आईडी दी हुई है jaipur@ici.org. आप चेयरमैन सर को, मुझे या जयपुर ब्रांच की किसी भी कमेटी मेंबर को आप इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं. वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर सीपीआर करें. बिकॉज क्या होता है कि हमें हो सकता है कि हमें लिमिटेड टाइम मिले या लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमें काम करना पड़ता है, और ये चीज हमें पता नहीं होती है कि मेंबर्स को रिक्वायरमेंट क्या चीज की है, क्योंकि एक हमारे पास एक लिमिटेड दायरा होता है कि हम किसी मेंबर से बात कर सकें और ये सब चीजें. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रोफेशनली अगर कहीं पे लगता है कि पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम पे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई प्रोग्राम होना चाहिए, तो आप प्लीज हमें बताइए, हम उसके लिए डेफिनेटली हम उसके लिए प्रोग्राम करेंगे. जैसे जीएसटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए तो मेंबर्स की क्वेरी आई कि सर क्यों ना स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज प्रोग्राम करें. तो आप देखिए कल से एक इंडस्ट्री वाइज पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड स्पीकर उसके लिए है. इंडस्ट्री वाइज हमने उस पर लिया है टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी, ट्रेवल्स,
मतलब जो भी पॉसिबल, जो भी सेगमेंट हो सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड इंडस्ट्री वाइज, हमने उन सबको कवर करने की कोशिश करी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसे प्रोग्राम की जो हो, जो यूजर डिमांड पे हो, तो उस पर प्लीज आप हमें बताइए, क्योंकि जब तक आपके सजेशंस हमारे पास नहीं आएंगे तो हमें कुछ नया करने का और कुछ नया यूजर फ्रेंडली कोई प्रोग्राम करने का वो हमें मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये तो हमारी गुजारिश है। और दूसरा, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के स्पीकर अशोक जैन सर का कि आप आए और एक ऐसा नया टॉपिक है, क्योंकि हमेशा जब बात होती है, जब 44 एडी की बात होती थी या कोई 271 के पेनल्टीज की बात होती, तो एक माइनर सा एक प्रोविजन सिर्फ कैश से उठा के डिस्कस होता था। बट आपने आज डेडिकेटेडली एक पूरा एक सेक्शन करा जिसपे कैश से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होते हैं उनसे रिलेटेड पेनल्टी क्या होनी है और प्रोफेशनल्स को क्या ध्यान करना चाहिए, इंडस्ट्री को या क्लाइंट्स को अपने क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उन सब पॉइंट्स को आपने कवर करा और डिटेल में क्वेरी डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आज के मॉडरेटर चंचल जी को कि आपने जयपुर ब्रांच के लिए आपने टाइम दिया, प्रोफेशन के लिए आपने टाइम दिया। मैं गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे ही इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और आप अपनी सर्विसेज जो प्रोफेशन के लिए है वो आप ऐसे देते रहें। और अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के हमारे व्यूअर्स को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड करा और हमें मोटिवेट किया कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नए प्रोग्राम करने के लिए। बिकॉज एक आपके व्यूज ही हैं, आपके ये जो पॉजिटिव जो आपके एक्शंस है वही हमें मोटिवेट करते हैं कुछ नए प्रोग्राम करने के लिए, कुछ अच्छे प्रोग्राम करने के लिए। और आप सभी इस चीज के वाकिफ होंगे कि पिछले 3 महीने में जब पूरी दुनिया एक तरह से अपने कमरों में बंद थी, तो हम सिस्टम पे आपके सामने थे कुछ नए प्रोग्राम करने के लिए, जीएसटी, इनकम टैक्स वर्चुअली, और नॉट ओनली फॉर मेंबर्स, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमने एक पूरी सीरीज हमने चालू करवाई बच्चों के सीए फाइनल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीजें करी और वो सभी आप ही की सजेशन से हमने वो चीज कोशिश करी कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you very much, Kuldeep. I'm continuing the thank you, Kuldeep sir. I'm continuing the thing covered by Kuldeep sir that yeah, institute is taking the session and that's really very kind initiative by the institute. So apart from this, institute is giving the session and organizing a session on GST by Saturday and Sunday. So if we must have started receiving the messages over our phones. If not, please send the queries to this chat so we can send you the link. That was a next initiative from our institute. And before ending this session, I really want to say thank you to Ashok. Really a great session and really knowledgeable. And this topic, I must say, was very nice you covered here, because this is not the topic which covered only by the industries. It is asked by the individual people who are making returns of even below 2,50,000 or sometimes more than 2,50,000. So it's really a very good topic. This time we have covered, and thank you so much, sir. You have covered it so nicely. And before ending this session, I really want to say thanks to CA Anil sir, by whom efforts we are having this great session. And it was really nice. Thank you so much, Anil sir. I want to say a few words because at the starting of the session we were running out of time, so we couldn't invite him. So now I want to invite him and say a few words. So it's over to you, Anil sir. थैंक यू सर। अशोक सर, एक क्वेरी रह गई मेरी नेटवर्क इशू में, मैं अभी पूछ लूँ सर, आप ऑर्डर करेंगे सर? माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। सर इस लाइन के बाद एसआर का जो पेट्रोल पंप है उसकी एजेंसी थी, उसने क्या किया कि जो पेट्रोल के परचेज होता है हमेशा आरटीजीएस करता था। यस। अब एक दिन थोड़ा कुछ इशू हो गया, वो आरटीजीएस करने का अकाउंट है तो आरटीजीएस वाले तो उसने उसके अकाउंट में डायरेक्ट कैश डिपोजिट करा दिया। 5 लाख रुपए कैश डिपोजिट करा दिया, फिर 5 लाख करा दिया। 3 दिन तक कंटिन्यूटी उसने 5-5 लाख रुपए डिपोजिट करा दिए। उसके बदले में वहां से पेट्रोल ऑयल आना था वो भी आ गया, ये पता नहीं लगा क्लाइंट को, सामने भी पता नहीं लगा, ऑडिट हो गई, सब चीजें क्लियर हो गई। सामने वाले की फाइल जब स्कूटी में आई तो वहां से लेजर के अंदर पकड़ने आए तो वो पेनल्टी लग गई। अब सामने आने से पेनल्टी लगी तो उसने उठा के यहाँ जो उसका एजेंट था उसको वहां पे उसने पेमेंट होल्ड कर दिया। तो इसका कोई है कि कैश पेमेंट है, लग तो रहा है कैश पेमेंट है परचेज के अगेंस्ट में, बट जीनाइनशिप तो है कि ठीक है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम या फिर 3 दिन हुआ, 365 दिन में परचेज होती है या 300 डेज परचेज, सिर्फ 3 दिन उसमें कैश डिपोजिट हुआ कंटिन्यूटी के अंदर, बट उसके बदले परचेज आ गया। तो इसका क्या सर कोई रास्ता है? देखिए क्लियर कट तो कोई रास्ता नहीं है इसके बारे में।
रीजनेबल कॉज का भी इशू इसमें नहीं दे रखा है, कोई रीजनेबल कॉज हो जिसके तहत हम उसको कैश पेमेंट अगर कर दें 48(3) से निकल जाए बाहर। 48(3) के लिए सिर्फ 6DD सिचुएशन जो दी है, रूल 6DD में जो सिचुएशन दी है वही प्रेस्क्राइब की हुई है। उन सिचुएशन में जो आप बात कर रहे हो कोई पेट्रोल पंप डीलर की, वो सिचुएशन उसमें मेंशन नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट द ऑफ पॉइंट कि जिसको कि हम कह सकें कि जिसके तहत वो निकल सकता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और रीजनेबलनेस भी क्या होगा, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होगी, इट कांट बी अगेन एंड अगेन। और सर चेयरमैन सर, अगर कुछ ज्यादा डिटेल में चाहिए हो तो सर के आप ऑफिस जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें सर यहाँ पे नहीं बता पा रहे होंगे। यहाँ सब हमारे सीए भाई लोग बैठे हैं, भाई बहने बैठे हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सर एक क्वेरी है पीएम नील अग्रवाल सर की तरफ से, what basic progression a client should take while receiving cash of more than ₹2 lakh? As a CA, how can we guide? Again, please come again. What benefit? What precaution? While receiving our cash more than 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव कर रहा है कोई, रिसीविंग कौन करने वाला है, मतलब कोई बिजनेसमैन? क्लाइंट वही बिजनेसमैन ना, बिजनेसमैन एक्चुअली। यस सर। हाँ तो सर उसको ध्यान तो देना ही, पहले 269 ST में देखना पड़ेगा उसको, और रूल 114E में भी उसको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। दोनों जगह पे ध्यान देना उसको, अगर उसकी ऑडिट भी होती है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, एंड थैंक यू अगेन टू द जयपुर ब्रांच विद दिस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एवरीवन। मैं सभी मेंबर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी अभी CP आज के लिए अपनी नाम और मेंबरशिप नंबर चैट बॉक्स में शेयर नहीं किया है, चैट बॉक्स में जो यूजर है ICI एडमिन जयपुर उनमें नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो शेयर करें, और उसके लिए सिर्फ नाम और मेंबरशिप नंबर ही लिखना है आपका, और बाकी ईमेल ID या प्रोफेशनल एड्रेस वगैरह कोई शेयर ना करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज वो कर दें, और जिन्होंने एक बार कर दिया प्लीज दोबारा ना करें, तो जिससे डुप्लीकेसी भी ना हो और कोई मिसिंग भी ना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने CPR शेयर कर दें। अच्छा सर, अशोक सर आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है सर, आपको तो दे देंगे सर। यस यस यस, आई नो आई नो। यस सर, आज आप सर मैंने वो तुम जो पोस्ट संभाल रहे हो ना, वो पोस्ट संभाली, इसलिए पता है प्रोसीजर थोड़ा सा। सर मुझे तो पता ही है सर कि आपका जो प्रेशर और आपका जो 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 आपका सपोर्ट मिलता है, मैं कहीं पे भी कुछ भी चीज होती है तो मैं आपको फोन करता हूँ और परेशान करता हूँ, क्योंकि सर आपके 2 नहीं सर 3 बैठे हैं सर, एक मैं भी हूँ, क्योंकि थैंक यू एवरीवन एंड होप यू enjoyed this session and have really good knowledge from this session, and stay safe, stay healthy, and thank you so much.